જૈન જાગૃતિ સેન્ટર નોર્થ ઇસ્ટ પ્રમુખ શ્રી નીતિનભાઈ સંઘવી અને સેક્રેટરી શ્રી રમેશભાઈ મોરબિયાના નેજા હેઠળ આપણે આપણા સમાજને લગતી આપણે ઘણી વિવિધલક્ષી પોલિસીઓ જે આપણને ખૂબ લાભદાયી છે એના વિશે આપણને અવેરનેસ જ નહોતી. પછી એ હોય ધંધાકીય લોન હોય, છોકરાઓને હાયર એજ્યુકેશન હોય, મેડિકલ હોય, તો ગવર્મેન્ટ તરફથી નોટ બટ કે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ, સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ તરફથી એટલી બધી સ્કીમો છે કે જેના લાભ વિશે આપણને સમજ જ નહોતી. નીતિનભાઈ, રમેશભાઈ અને સમગ્ર કમિટીની એક મિટિંગમાં એ રીતે નક્કી થયું કે આપણને જૈનોને પ્લસ ઇન્ડિયનની કોઈ બી કાસ્ટ, ખાલી નોટ જૈન, જો એ લોકોને શું શું લાભ મળે છે તો આપણે એની એક અવેરનેસ લોકોમાં લાવીએ અને એ લાવવાથી આપણા સમાજને પ્લસ દરેક સમાજને ખૂબ મોટા લાભ થઈ શકે. તો આમાં અમે લોકોએ એક પગલું ભરવાનું વિચાર્યું. તો સૌ પ્રથમ અમે લોકોએ ચાલુ કર્યું આયુષ્યમાન કાર્ડ અમારી ઓફિસમાં, જે 5 લાખ રૂપિયા સુધીનો વીમો કવર હોય છે. તો સમાજના ખૂબ આપણે જૈનો, દેરાસર, સ્થાનક બધા લોકોએ એનો લાભ લીધો. પ્લસ હવે આજે બી અમારી ઓફિસમાં એ કાર્યક્રમ ચાલુ છે અને હજી બી ઇતર કોમ પણ આવે છે અને એનો લાભ લઈ રહી છે. તો એ કરતા વિચાર આવ્યો એજ્યુકેશનનો. એજ્યુકેશન પછી વિચાર આવ્યો કે પોસ્ટ ઓફિસમાંથી જે લાભ મળે છે કે 500 રૂપિયા ભરીને 10 લાખનો વીમો. હવે તમારી પોતાની કોઈ એક શોપ હોય અને તમારે ત્યાં એમ્પ્લોય કામ કરતો હોય અને એ ઘરેથી નીકળ્યો અને ક્યાંક એનો પગ લપસ્યો ને એ પડી ગયો અને એને 2 મહિના 3 મહિનાનો ખાટલો આવી ગયો, તો એનો પગાર તમારે આપવો પડે. તો જો આ ન કરો તો શું થાય છે? તો આ ગવર્મેન્ટનો 500 રૂપિયાનો ફક્ત વીમો કે જેમાં એનો આ દરેક ખર્ચો એની અંદર સામેલ છે, એની અંદર ઘણી. તો એ પણ આપણે આપણી ઓફિસમાં કર્યું, તો એનો બી ખૂબ લોકોએ લાભ લીધો. એના પછી આધાર કાર્ડ અપડેટ, પેન કાર્ડ અપડેટ, કે ઘણીવાર એના પૈસા આપવા પડતા હતા, એ જે ફ્રી જ હતું એ બી આપણે ત્યાં થયું. એમ કરતાં આજે અમે એક નવો વિચાર આપની સમક્ષ લઈને આવી રહ્યા છીએ, જે એક આ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટની પોલિસી છે, સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટની, કે જેને સ્ટાર્ટઅપ માટે જોઈતું હોય લોન, કોઈને બિઝનેસ માટે લોન જોઈતી હોય, કોઈ ગૃહિણી ઘરે કામ કરતી હોય એને કોઈ લોન જોઈતી હોય, તો આ બી સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટની ઘણી બધી સ્કીમો છે જેના વિશે આપણને અત્યાર સુધી કોઈ અવેરનેસ બી નહોતી, આપણને કોઈ જાણ બી નહોતી. તો એની માટે જૈન જાગૃતિ નોર્થ ઇસ્ટ દ્વારા આ એક પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે કે આ લોન કોઈ બી કાસ્ટના હોય તો એને કેવી રીતે મળે, એને કેવી રીતે એનું ગુજરાન ચલાવવામાં મદદ થાય, એનો બિઝનેસ ચલાવવામાં મદદ થાય. તો એની માટે ખાસ આપણે આજે આ સેમિનારનું આયોજન કર્યું છે, જેમાં આજે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટના ઓફિસરો અહીંયા આવ્યા છે. થોડીક ક્ષણમાં બેન્કોવાળા પણ આવશે, તો એમને પણ તમે પૂછી શકો છો. અને આજે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટના ઓફિસરો આપણી વચમાં આવ્યા છે, જ્યારે એ તમને સમજાવતા હોય ત્યારે મહેરબાની કરીને આપ સર્વે એકાગ્રતાથી સાંભળજો. તમારા મોબાઈલને થોડીક વાર માટે ખાસ સ્વિચ ઓફ અથવા તો સાયલેન્ટ મોડ પર મૂકી દેશો, કારણ કે આમાં તમે કાંઈક સાંભળવાનું ચૂકી જશો ને તો તમે કાંઈક ખોશો. તો આપ સર્વેને વિનંતી છે કે આપ સર્વે સેન્ટ્રલ આપણા જે સેન્ટરમાંથી જે આવ્યા છે સાહેબ લોકો, એમને આપ ધ્યાનથી સાંભળશો. એનાથી પહેલાં હું અહીંયા ડિમ્પલબેન અને પ્રિયંકાબેનને બેને ઉપર આવવા માટે વિનંતી કરીશ અને આગળનો આખો કાર્યક્રમનું સંચાલન હું ડિમ્પલબેનને સોંપું છું. ડિમ્પલબેન પ્લીઝ આવો. પ્રિયંકાબેન આ જઈએ ઉપર. થેન્ક યુ વેરી મચ. નોર્થ ઇસ્ટ આવેલ સર્વે મહેમાનોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય જિનેન્દ્ર. આજે આપણે જેજેસી નોર્થ ઇસ્ટ દ્વારા પ્રસ્તુત સરકાર દ્વારા માન્ય, એટલે કે જેને પણ પોતાનો બિઝનેસ કરવો હોય તો સૌથી પહેલાં આપણું આ વિચાર જ્યારે સ્ટાર્ટ થાય તો આપણે ક્યાં આવીને અટકી જઈએ છીએ? ફાઇનાન્શિયલ, કે કોઈ પણ બિઝનેસ આપણે સ્ટાર્ટ બી કરવો હોય તો કેવી રીતે કરવાનો, કારણ કે ફાઇનાન્સ વગર આપણો બિઝનેસ પોસિબલ જ નથી. તો જેજેસી નોર્થ ઇસ્ટ દ્વારા અમે લોકો આજે સરકાર દ્વારા માન્ય શ્રી પંતપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજીએ લઘુ ઉદ્યોગને પ્રમોટ કરવા માટે, એટલે અપગ્રેડ કરવા માટે, અને જેને પણ પોતાનો સ્ટાર્ટઅપ બિઝનેસ કરવો છે એને પણ આજે અમે લોકો ઘણી બધી અહીંયા ઇન્ફોર્મેશન આપવાના છીએ. એટલે આજે આપણી વચ્ચે અહીંયા સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ યોજના અને સ્ટેટ એગ્રીકલ્ચર યોજનાના સર શ્રી વિશાલ માનેસર, ટેકનિકલ ઓફિસર એગ્રીકલ્ચર થાને,
હા વિશાલ સર, હા ઓકે. અને શ્રી ભગવાન પતારે સર, એગ્રીકલ્ચર ઓફિસર કલ્યાણ, અને શ્રી ગજાનન જગાતે સર ડીઆરએ છે જે આ યોજનાના આપણા એરિયાના. તો ત્રણે સર આવીએ. થોડીક વારમાં બેંકના મેનેજર બી આવવાના છે. તાનો પર્સનલ નંબર આપણને મોકલાવ્યો છે કે અમે ન પહોંચી શક્યા તો અમારો નંબર તમે લોકો જેને પણ ઇન્ટરેસ્ટ હોય એને શેર કરી શકો છો. इस प्रोग्राम का मतलब ये ठाणे डिस्ट्रिक्ट और मुंबई सिटी, मुंबई सब अर्बन, इस एरिया में जो कोई प्रोसेसिंग के बारे में माइक्रो प्रोसेसिंग वाली जो स्कीम रहती है इसमें हम लोग काम करते हैं. स्टेट गवर्नमेंट से हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है तो वो PMFME जो है, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है. 2020-21 से वो स्टार्ट हुई है. और इस स्कीम में जो नोडल एजेंसी है महाराष्ट्र स्टेट में हमारा कमिश्नर ऑफ एग्रीकल्चर और जो है पुणे वाले, तो वो उसमें नोडल ऑफिसर है और वो उनकी तरफ से वो स्कीम हमारे यहाँ रन होती है. और इस स्कीम में जो अर्बन एरिया है उधर वो फूड प्रोसेसिंग वाले जो स्मॉल स्केल वाले इंटरप्राइजेस रहते हैं उसमें हम 35% सब्सिडी इस स्कीम में देते हैं. तो हम PPT की तरफ से आपको दिखाते हैं वो स्कीम क्या है और इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं. सर PMFME वाला लगाओ पहला. फूड प्रोसेसिंग में हमारा जो डिपार्टमेंट है इस डिपार्टमेंट से दो स्कीम रहती है. वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट वाली PMFME है और दूसरी है CM प्रोसेसिंग, मतलब वो चीफ मिनिस्टर एग्रीकल्चरल फूड प्रोसेसिंग स्कीम है. उस स्कीम में जो फंडिंग रहता है वो स्टेट गवर्नमेंट का रहता है और ये PMFME जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है. इसमें जो छोटे छोटे मतलब वो बिजनेस करते हैं उनको 35% सब्सिडी है. मैक्सिमम कैप इस स्कीम में 10 लाख की है और उसमें लोन जो है बैंक लोन कंपलसरी है. 10% का जो कंट्रीब्यूशन है वो बेनिफिशियरी का रहेगा. 90% तक आप लोन लेकर वो स्कीम में आप सहभाग ले सकते हैं. तो स्कीम जो है वो 2020-21 से चालू हुई है. उसमें 10,000 करोड़ का वो आउटले है और अभी ये स्कीम के लिए मार्च 2026 तक एक्सटेंशन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने. नेक्स्ट इसमें जो एक करोड़ तक के जो बिजनेस होते हैं उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन वो सब्सिडी का कैप जो है वो 10 लाख ही है. मतलब आप 30 लाख का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे तो आपको 10 लाख की सब्सिडी इस स्कीम में मिलेगी. आगे इधर आपको दिखाया है कि वो स्कीम का जो पीरियड है वो 5 साल के लिए पहला दिया था, अभी वो 1 साल के लिए एक्सटेंड हुई है. मार्च 2026 तक ये स्कीम रन हो रही है अभी. और वो असंगठित क्षेत्र में जो काम करने वाले जो बिजनेस पर्सनल है उनको स्कीम में संगठित रूप में फोरम पर आने के लिए इन्वॉल्वमेंट में है वो इसमें हो सकता है. इसलिए स्कीम में गवर्नमेंट ने फोकस किया है. आगे वाला ये कमेटी रहती है. ये आप जब स्कीम में अप्लाई करते हैं तो पूरा जो बेनिफिशियरी है, बेनिफिशियरी के लिए हैंड होल्डिंग के लिए जिले में 30 तक का डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हैं. वो पर्सन आपको हैंड होल्डिंग के लिए पूरा सपोर्ट करेंगे. आपके लोन के लिए बैंक में आप बैंक का चॉइस तो आपका रहेगा, लेकिन वो बैंक में प्रपोजल का जो DPR बनाना है, ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई करना है, इसके लिए सभी हैंड होल्डिंग जो रहेगा वो DRP की तरफ से आपको मिलेगा. और DRP मुंबई शहर, उपनगर और ठाणे ये तीनों जिलों के लिए गवर्नमेंट ने अपॉइंटमेंट किए हैं. और वो अपॉइंटमेंट मतलब वो अपॉइंटमेंट उनकी कलेक्टर की साइन से होती है DRP की.
और वो डीआरपी में मतलब ये कमिटी रहती है स्कीम के लिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो रहते हैं वो इसके हेड रहते हैं, और हमारा डिपार्टमेंट के जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल सुपरिटेंडिंग एग्रीकल्चर ऑफिसर रहते हैं वो उसके सदस्य सचिव बोलते हैं, वो सेक्रेटरी रहते हैं, और उनकी तरफ से प्रपोजल का पूरा हैंड होल्डिंग रहता है। मतलब आप प्रपोजल ऑनलाइन पोर्टल पर डालते हैं डीआरपी की हेल्प से, तो उसकी स्क्रूटिनी हम हमारे ऑफिस में करते हैं, और इसके बाद वो प्रपोजल बैंक में जाता है। आपने जो कोई कंसर्न बैंक दी होगी तो वो इस ब्रांच में जाकर उधर फिर एक बार स्क्रूटिनी होकर आपको सैंक्शन मिलता है। सैंक्शन मतलब ये बैंक ने लोन सैंक्शन किया तो आपको सब्सिडी के लिए आप पात्र रहते हैं, और इसमें साधारण 2 महीने के बाद वो सब्सिडी आपके अकाउंट में, लोन अकाउंट जो रहता है आपका, उस लोन अकाउंट में आती है। इसमें 60-40 का रेशो है। सेंट्रल गवर्नमेंट के फंडिंग का रेशो जो है वो स्कीम में 60% सेंट्रल का है और 40% स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट इस स्कीम में है। और पहले वो स्कीम स्टार्ट होने की पहली जो हुई थी उसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पर ही स्कीम काम कर रही थी। स्कीम में मतलब ओडीओपी की तरफ से मुंबई सिटी में सिर्फ फिशरी वाले प्रोडक्ट ही अलाउ किए थे। इसके बाद जब ठाणे में तो मिलेट वाला था, मुंबई सिटी और मुंबई सब अर्बन में फिशरी वाले प्रोडक्ट थे। इसके बाद थोड़ी सी पॉलिसी में चेंज हुआ और वो सभी प्रोडक्ट जो है वो इसमें आ रहे हैं। अभी आप देखते हैं कि वो कुकीज रहते हैं, नाचने वाला लड्डू रहता है और फरसान रहता है, बेसन के लड्डू वाले रहते हैं, वो स्वीट मार्ट में जो खवा बनता है, मिल्क के सभी प्रोडक्ट रहते हैं, वो सब इस स्कीम में आते हैं। और इसके लिए जो मशीनरी खरीदना है उस मशीनरी पर हम लोन लेते हैं, तो टर्म लोन लेने के बाद आपको 35% सब्सिडी मिलती है। ये सब्सिडी का क्या पैसा है कि 1 लाख से 30 लाख तक आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। 1 लाख का आप जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे तो आपको 35,000 सब्सिडी मिलेगी। ऐसा स्कीम का स्मॉल स्ट्रक्चर है। आगे वाला, इसमें जो अपग्रेडेशन वाले प्रोजेक्ट है वो आ सकते हैं, एक्सटेंशन वाले जो प्रोजेक्ट है वो भी आ सकते हैं, और मॉडर्नाइजेशन कोई कर सकते हैं, कोई मॉडर्नाइजेशन वाले मशीनरी खरीदना चाहते हैं तो वो भी इसमें आता है। पहले स्कीम स्टार्ट हुई तो उसमें सिर्फ नए वाले प्रोजेक्ट इसमें अलाउ थे, इसके बाद वो एक्सटेंशन वाले सभी प्रोजेक्ट अभी अलाउ किए हैं। ये नोडल एजेंसी का दिया है, अभी वो सैंक्शन का भी का है वो। ये सब बेनिफिशियरी स्कीम में आते हैं। यहाँ मतलब वो जो इंडिविजुअल है, एफपीओ रहती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सभी को इस स्कीम में आप बेनिफिशियरी में मतलब बेनिफिशियरी के तरफ से सहभाग ले सकते हैं। इसके बाद वो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसके लिए पहले तो महिला बचत गट रहते थे, उनको भी सेपरेट तरफ से लॉगिन दिया था। अभी वो दोनों ही इंडिविजुअल बेनिफिशियरी कंसिडर करके इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। जो बेनिफिशियरी स्कीम में इन्वॉल्व होगा उसको हम 3 दिन का ट्रेनिंग देते हैं। हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट ने ठाणे में इंस्टीट्यूट भी मतलब वो इंस्टीट्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के दोनों की तरफ से एक अपॉइंट किए है, और उसमें हम निपटेम की तरफ से जो तंजावुर में इंस्टीट्यूट है उनका कोलैबोरेशन की तरफ से हम 3 दिन का आप उस बेनिफिशियरी के लिए ट्रेनिंग भी देते हैं, और उस 3 दिन के ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी सेंट्रल गवर्नमेंट का मिलता है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। मतलब वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, सभी जो हैंड होल्डिंग है वो इस स्कीम में फ्री ऑफ हैंड है। हैंड होल्डिंग के लिए मतलब आपको डीआरपी सपोर्ट करेंगे। ये थोड़ा सा स्कीम स्टार्ट होने के बाद जो उनके निकष थे उसमें थोड़ा सा दिया है कि वो बेनिफिशियरी रहता है, उनका जो मतलब ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पहले दिया था, अभी ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो अट थी वो भी कैंसिल की है। तो कोई भी बेनिफिशियरी जो रहेगा वो मतलब ये 18 साल के आगे वाला और 65 एज तक का, वो सभी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। आगे ये कन्वर्जेंस वाला है। इसमें पीएमएपीएमई स्कीम में आप बेनिफिशियरी बनते हैं तो कोई ऐसे भी प्रोडक्ट रहते हैं कि वो प्राइमरी प्रोसेसिंग वाले हैं, मतलब वो दाल मिल रहेगा
या ऑयल मिल रहेगा, तो जो प्राइमरी प्रोसेसिंग वाले प्रोजेक्ट रहते हैं उसमें हम पीएमएपीएमई का 35% वाला लाभ, और उसके बाद वो जो आप लोन लेते हैं लोन में 3% इंटरेस्ट सब्वेंशन, मतलब वो जो लोन रहेगा आपको 6% से मिलेगा। ऐसी वाली एक AIF करके सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो दोनों कन्वर्जेंस करके ही हम लाभ इसमें देते हैं। लेकिन वो प्राइमरी प्रोसेसिंग वाला प्रोडक्ट रहना चाहिए इसमें लोन की वो जो लाभ लेने वाले बेनिफिशियरी है उनको लोन कंपलसरी है, मतलब वो क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडेड सब्सिडी है। आपकी सब्सिडी जो जमा होगी वो आपके लोन अकाउंट पर मिलेगी, और उसके बाद वो 3 साल तक होल्ड रहेगी। जब तक वो लोन आपका और वो बिजनेस जो है वो 3 साल तक आप रन करते हैं तब तक वो आपके लोन अकाउंट पर ही रहेगी। इसके बाद वो आपके प्रिंसिपल में कन्वर्ट होगी सब्सिडी का अमाउंट। इसमें जो बेनिफिशियरी का कंट्रीब्यूशन है वो 10% से 40% तक आपका खुद का कंट्रीब्यूशन आप इसमें डाल सकते हैं, और मतलब 60% या 90%, 60% से 90% तक लोन आप इस स्कीम में ले सकते हैं। ये जो रहेगा वो मतलब वो इंडिविजुअल बेनिफिशियरी वाले जो कंपोनेंट है उसमें हम फोकस करते हैं कि ये जो अर्बन एरिया है उसमें छोटे छोटे शॉप्स रहते हैं, स्वीट मार्ट रहते हैं, उसमें जो मशीनरी लगते हैं ना उसके लिए ही थोड़ा सा फोकस इस स्कीम में है। और वो जो FPO रहते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, तो इस अर्बन एरिया में नहीं रहता, लेकिन वो FPO के लिए जो रहेगी तो किसी के रहेगी तो इसमें 3 करोड़ तक की सब्सिडी है। 35%, मतलब वो 10 करोड़ का प्रोजेक्ट आप बनाएंगे तो उसमें 3 करोड़ तक का सब्सिडी इसमें मिलेगी। ऐसा वाला वो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, मतलब कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड रूम, कोल्ड चेन का जो रहेगा पोस्ट हार्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का, तो उसमें CIF में आएगा वो। इंक्यूबेशन सेंटर भी इसमें 35%, मैक्सिमम 3 करोड़ में इसमें बड़े वाले प्रोजेक्ट आते हैं। जैसे आप बोलते हैं गोकुल मिल्क है, उनका दही वाला प्रोजेक्ट है इसमें बैठा है, तो ऐसे बड़े वाले जो प्रोजेक्ट रहेंगे तो CIF या इंक्यूबेशन सेंटर से हम इस स्कीम में ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट जो लगते हैं स्कीम में इन्वॉल्वमेंट के लिए, तो ये वाला डॉक्यूमेंट है। इसमें आपका जो मशीनरी लेने वाले हैं उनका कोटेशन महत्वपूर्ण है, कौन सी मशीनरी लेने वाले हैं। और इसमें एक 2 कंपोनेंट है कि बिल्डिंग स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो बिल्डिंग स्ट्रक्चर के लिए 30% एंड मशीनरी के लिए 70%। इस रेशो से हम बिल्डिंग वाला जो कोई डेवलपमेंट करने वाला है तो वो भी कर सकते हैं। मतलब 10 लाख का प्रोजेक्ट रहेगा तो 7 लाख मशीनरी के लिए और 3 लाख बिल्डिंग के डेवलपमेंट के लिए, ऐसा स्ट्रक्चर इस DPR में हम बना सकते हैं। तो इधर आपको प्रोडक्ट्स दिखने को मिलेंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट है और कौन कौन से मतलब इस स्कीम में बेनिफिशियरी कौन कौन से प्रोडक्ट के ऊपर रहेगा। बेकरी वाला प्रोडक्ट भी इसमें आता है, मतलब वो केक भी रहेगा तो भी चलता है, लेकिन वो मावा वाला केक रहेगा, वो आइस केक नहीं बैठता इसमें। और जो डेली यूज वाला रहता है, मतलब वो वड़ा पाव भजी ऐसा वाला जो रहता है वो नहीं आता। जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेल्फ लाइफ वाला रहेगा, मतलब वो पैक करके बेचने वाला जो प्रोडक्ट रहते हैं वो ही स्कीम में आता है। ये एग्रीकल्चरल वाले जो प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चरल मतलब वो तृण धान्य बोलते हैं, उकड़ धान्य रहते हैं, तो उसके अलावा जो मिल्क है, मिल्क आएगा और फिशरी का आएगा। ये दोनों भी दूसरे डिपार्टमेंट रहते हैं, इसके लिए फिशरी के लिए सेपरेट है और मिल्क के लिए डेयरी डिपार्टमेंट सेपरेट है। लेकिन वो स्कीम हमारी तरफ से प्रोसेस्ड वाला जो प्रोजेक्ट रहेगा तो हमारी तरफ से इसमें इन्वॉल्वमेंट आप कर सकते हैं। ये थोड़ा सा सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए ट्रेनिंग रहता है। स्कीम में ही जो महिलाओं के बचत गट है जो बीज भांडवल का लाभ लेते हैं, सीड कैपिटल, तो सीड कैपिटल वाले महिलाओं के लिए इसमें 4 लाख तक का 10 महिला का गट रहेगा, तो
सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए 4 लाख के लिए वो हैंड होल्डिंग के लिए 4 लाख मिलेगी। मतलब वो जो वर्किंग कैपिटल की तरफ से छोटा छोटा मशीनरी लेते हैं बचत गट, तो उसके लिए वो 4 लाख तक दे सकते हैं इसमें बीज भांडवल सीड कैपिटल की तरफ से। ट्रेनिंग का बताया, और मार्केटिंग और ब्रांडिंग, अभी आप ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप की तरफ से प्रोडक्ट फाइनल करते हैं, जैसा कि अमूल का ब्रांड है, गोकुल वाला ब्रांड है, ऐसा मिल्क का ब्रांड रहता है, ऐसा ही कोई ब्रांड बनाकर सह्याद्री एग्री फार्मर प्रोड्यूसर है कंपनी जो है नासिक वाली, सह्याद्री का वो ब्रांड है, तो ऐसा ब्रांडिंग और मार्केटिंग का प्रोडक्ट भी आप दे सकते हैं। तो इसके लिए ही सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 50% तक का सब्सिडी इसमें है, उसका भी DPR बना के आप देंगे तो वो भी इसमें अलाउ करते हैं हम लोग। ये सभी प्रोसीजर दिए है कैसा आप स्कीम में आ सकते हैं। जैसा मैं बोला कि वो DRP रहते हैं, हर जिले के लिए वो DRP अपॉइंट किए हैं, तो आपके यहाँ वो जगह साहब है, वो भी काम करते हैं इसमें। आप कोई जो कोई इंटरेस्टेड है तो आप उनकी तरफ से इन्वॉल्व कर सकते हैं स्कीम में। तो मतलब वो जो प्रोडक्ट रहेगा वो सेल्फ लाइफ वाला रहेगा, वो परचेस करके मतलब वो जो कोई हम सेल करेंगे तो वो सेल्फ लाइफ वाला ही, और जिसको हम वैल्यू एडिशन करते हैं वो ही स्कीम में आएगा। ऐसी वाली ये स्कीम है। 35% का सब्सिडी जो है तो वो इसमें 2 महीने के बाद, मतलब वो लोन सैंक्शन होने के बाद मिलती है। और ये हमारे स्टेट में जो इसकी स्टेटस जो देखते हैं आप, तो 20,000 का जो टारगेट है तो हमारे स्टेट में उस स्कीम में कवर किया है। मतलब वो महाराष्ट्र स्टेट लीडिंग स्टेट है इसमें। तो जो मुंबई सिटी, मुंबई सबअर्बन एरिया है, उसमें जो लोगों को स्कीम के बारे में पहचान नहीं है, इसलिए ये थोड़ा सा सेमिनार की तरफ से आपको ये स्कीम के बारे में हमने बताया। PMAPM तो अभी 4 साल हुए, बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से इनकी इंफॉर्मेशन मिली होगी, लेकिन उनका जो इधर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर नहीं है मुंबई में, तो वो DRP की तरफ से हम इन्वॉल्वमेंट के लिए स्कीम में आ सकते हैं। तो जो इंटरेस्टेड हो गए तो आपको लिस्ट भी हम बनाएंगे, और लिस्ट से हम आपको कांटेक्ट करके थोड़ा सा इसमें हेल्प करेंगे, हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी देंगे। ये PMAPM के बाद दूसरे वाले लगा वो CM प्रोसेसिंग। સરે જે આપણને ડિટેલમાં સમજાવ્યું, જેવી રીતે ગવર્મેન્ટની 3 ટાઈપની લોન છે, PMFME, CMAGP અને PMAGP. તો આમાં આપણે અત્યારે જે પણ એટલે PMFME એટલે પ્રધાનમંત્રી સૂક્ષ્મ અન્ન પ્રક્રિયા યોજના, એટલે એમાં શું છે, ફૂડ પ્રોડક્ટ, એની અંદર ડેરી પ્રોડક્ટ, બેકરી રિલેટેડ પ્રોડક્ટ, પ્લસ ઘર ઘરાઉ જે લેડીઝો ટિફિન કરતા હોય, નાસ્તા બનાવવાનું કરતા હોય, એ લોકોને પોતાનો બિઝનેસ ઘરથી બહાર એડવાન્સ કરવો છે, જેવી રીતે પોતાનો પ્રોડક્ટ એમને માર્કેટમાં લાવવો છે, એનું પેકેજિંગ, એનું બ્રાન્ડિંગ, એનું માર્કેટિંગ કરીને આગળ વધવું છે, તો આ યોજના એની માટે છે PMFME. પ્લસ આની તમને બિઝનેસ ટ્રેનિંગ 3 દિવસની ટોટલી ફ્રી આપવામાં આવશે, સર્ટિફિકેટ ગવર્મેન્ટનું આવશે, અને 1250 રૂપિયા ગવર્મેન્ટ તરફથી તમારા અકાઉન્ટમાં ટ્રેનિંગ લીધી છે એના આવશે. અને તમારો બિઝનેસ તમે જ્યારે સ્ટાર્ટ કરો છો તો આ સર્ટિફિકેટ તમને બહુ જ કામ આવવાનું છે કે તમે ગવર્મેન્ટ અપ્રુવલ યોજના અંતર્ગત તમારો બિઝનેસ રન કરી રહ્યા છો. હવે આમાં કોઈને કંઈ પૂછવાનું છે? કોઈને કંઈ ક્વેરીઝ છે? 3 દિવસનો જે સેશન છે એટલે એમાં છે ને, હવે સમજો કે તમે લોન માટે અપ્લાય કરો છો, એટલે આપણી વચ્ચે DRP જે મુંબઈ સબબના અપોઇન્ટ કરેલા છે એ પણ આવેલા છે. તો તમે લોન માટે જ્યારે અપ્લાય કરશો તો તમે જાતે પણ કરી શકો છો, તમને ન ફાવે તો એ પણ આપણને હેલ્પ કરશે. તમારી એપ્લિકેશન ત્યાં સ્ક્રુટિની થશે ટેકનિકલમાં, ત્યાંથી તમને કોલ આવશે, તમને અપોઇન્ટમેન્ટ આપવામાં આવશે 3 દિવસની કે તમારી ટ્રેનિંગ ફાઇનલ થઈ છે. એમાં તમારો બિઝનેસ તમારે કેવી રીતે સ્ટાર્ટ કરવો
કેવી રીતે એને એડવાન્સ કરવો, ગ્રો કરવો, પેકેજિંગ, માર્કેટિંગ, નેશનલ અને ઇન્ટરનેશનલ સુધી પહોંચાડવો. 3 દિવસની ટ્રેનિંગમાં આ બધું જ આવી જાય છે. મેં પોતે આની ટ્રેનિંગ લીધેલી છે. એમાં એ લોકો તમને ડિટેલમાં સમજાવશે એકદમ, એટલે પૂરું તમને જ્યારે 3 દિવસ પછી તમે બહાર નીકળશો ને, તમે જો પ્રોપર અટેન્ડ કરી હશે ટ્રેનિંગ, તો તમને ખબર પડી જશે કે હું આમાં કેવી રીતે આગળ વધીશ અને નેશનલ પણ ને ઇન્ટરનેશનલ પણ કેવી રીતે મારો બિઝનેસ એક્સપાન્ડ કરી શકીશ. પ્લસ આપણી પાસે 3 યોજના છે. PMFME જે છે એ ખાલી ફૂડ રિલેટેડ છે. એમાં મેન્યુફેક્ચરિંગ રિલેટેડ જ આપણે અપ્લાય કરી શકશું. આના પછી હવે આપણે CMEGP અને PMFME PMEGP એ પણ યોજનાનું આપણને આગળ સમજાવી રહ્યા છે. ટ્રેનિંગ ક્યાં હશે? થાણામાં હશે. એનું એડ્રેસ મળી શકશે ભાઈનું, એમને ક્યાં મળવાનું? हाँ, प्रीमिक्स आमा कर सकते हैं, है ना सर? प्रीमिक्स कर सकते हैं ना इसमें? हाँ सर, इसमें जो सब्सिडी जो मिलती है बेसिकली सिर्फ मशीनरी पे मिलती है कि हम लोग का करंट कैपिटल के वर्किंग कैपिटल के लिए मिलती है? વર્કિંગ કેપિટલ પર તમને સબસિડી મળશે 35%. તમારા અકાઉન્ટમાં 2 મહિનામાં જ જમા થઈ જશે, પણ 3 વર્ષ પછી તમે એને યુઝ કરી શકશો, કારણ કે 3 વર્ષનું તમારું જે પણ ફાઇનાન્શિયલ રિપોર્ટ બેંક સાથે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ને બધું રેગ્યુલર હશે. 3 વર્ષ પછી તમે એને યુઝ કરી શકશો. मतलब अगर सपोज तुम्हारी योजना में 10 लाख में तुम्हें 10 लाख का सब्सिडी आप देते हो, सपोज 30 लाख का रिपोर्ट बनाया, 10 लाख का आप सब्सिडी जो देते हो उसे मशीनरी के लिए ही यूज कर सकते हो. તમારો પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ 30 લાખનો હોય તો 10 લાખ તમને સબસિડી મળશે, પણ 3 વર્ષ પછી યુઝ કરી શકશો તમે એને. हो जाए ना 30 लाख का आप टर्म लोन लेते तो 3 लाख तक का आपको सब्सिडी तो मिलेगी. उसके बाद वर्किंग कैपिटल है वो एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, लेकिन वर्किंग कैपिटल पर सब्सिडी नहीं है. वर्किंग कैपिटल हम DPR में उसमें ऐड करते हैं तो सब्सिडी में वो पार्ट नहीं मशीनरी और 30% तक सिविल कंस्ट्रक्शन वो भी आता है इसमें. नहीं, जैसे सब्सिडी जो फॉर्मेट आप जो बोल रहे हो, जैसे मैंने पूछा कि आप यूज बाद में कर सकते हो. जैसे मैंने मशीनरी खरीदी है, सपोज 10 लाख की मशीन 30 लाख की मशीनरी खरीदी है, 10 लाख का जो पेमेंट आप मेरे को जो मिलेगा वो डायरेक्ट आप उस अकाउंट में दोगे डायरेक्ट? इसका कैसा है कि वो आपके जो लोन अकाउंट है उसमें सब्सिडी क्रेडिट होती है. अच्छा. इसके बाद वो जो प्रोजेक्ट है वो 3 साल तक रन होता है कि गवर्नमेंट चेक करता है. बरोबर. जब सब्सिडी आपके उस अकाउंट में लोन अकाउंट में क्रेडिट होगी, इसके बाद जितना सब्सिडी का अमाउंट है इतने अमाउंट का जो इंटरेस्ट है वो बैंक लेती नहीं वो आपसे. जो जितना अमाउंट का सब्सिडी का इंटरेस्ट आपको नहीं लगेगा. और ये 3 साल के बाद जब आपका लोन और प्रोजेक्ट रन रहता है तो उसके बाद वो प्रिंसिपल में कन्वर्ट होता है 3 साल के बाद. लोन रिड्यूस होगा उसमें. એટલે તમારો 3 વર્ષ બિઝનેસ કન્ટિન્યુઅસ રન કરે છે કે નહીં એના પર ગવર્મેન્ટની વોચ રહેશે. તમારો બિઝનેસ બરાબર રન થાય છે એટલે તમારું લોન અમાઉન્ટ રિડ્યુસ થઈ જશે, અને એ જે અમાઉન્ટ છે તમારું વર્કિંગ કેપિટલ એના પર બી એ લોકો ઇન્ટરેસ્ટ નથી લગાવતા. अले भाई एक मिनट अले प्रॉफिट लॉस इसका कोई नहीं है मैडम. ये जो है ना मतलब ये ऐसी स्कीम है कि बैंक को भी सिक्योरिटी रहती है स्कीम में कि 35% सब्सिडी जो रहती है वो बैंक के पास रहती है, तो बैंक इजीली इस लोन के लिए आपको हेल्प करती है. लेकिन कोई बैंक का थोड़ा ऐसा भी है कि वो बेनिफिशियरी को सपोर्ट नहीं करते. बहुत सारे ऐसे प्रपोजल अभी बैंक में रहेंगे तो मतलब वो सिक्योरिटी और वो CGTMSE ट्रस्ट ऐसा हेल्प करके ही आप बैंक से लोन ले सकते हैं इसमें. हाँ, और ये अकाउंट NPA होगा, मतलब वो बेनिफिशियरी का अकाउंट NPA होगा तो भी वो सब्सिडी गवर्नमेंट रिवर्स नहीं लेती. वो बैंक को रहेगी या वो बेनिफिशियरी को, ऐसा दोनों टर्म रहेगी इसमें. કોઈ એજ લિમિટ હોય છે? 18 to 65 કોઈ પણ લોકો અપ્લાય કરી કોઈ પણ શકે apply છે. કરી Yes, yes. Thank you. અને એજ્યુકેશન ક્રાઇટેરિયા પણ નથી, 8 પાસ હોય તો બી કરી શકે છે. સર સબસિડી બેંકમાં જમા હોય हाँ बोल
कैपिटल 3 साल के बाद होगा, मतलब लोन अकाउंट में जमा हो जाएगा। हाँ 3 साल तक जितना भी लोन लिया है हाँ उसी अकाउंट में आएगी, आपके लोन अकाउंट है इसमें आएगी, इस मतलब उतना लोन ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट के लिए कम होगा। कम होगा बराबर। बराबर। बोलो 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 सर मेरा दाल मिल है, मेरे को मशीनरी के लिए नहीं लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिए लोन चाहिए, तो कितना मेरे को मिल सकता है? नहीं, इसमें ऐसा है कि अनप्रोडक्टिव जो रहते हैं ना उसके लिए नहीं है, मतलब वो रेशो में आप लेते तो मिलेगा, मतलब वो 30% सिविल कंस्ट्रक्शन और 70% मशीनरी, ओनली मशीनरी के लिए मिलता है, लेकिन ओनली सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं इसमें है। मशीनरी मेरे पास है तो नहीं, आप एक्सटेंशन वाला और वो जो अपग्रेडेड मशीनरी जो खरीदते हैं ना, तो उसमें ऐड करके आप સિવિલ કન્સ્ટ્રક્શન का भी डाल सकते हैं। તમારું ઓલરેડી મશીનરી કે કાંઈ છે અને તમારે અપગ્રેડ કરવું હોય ને તો એની માટે તો રિસન્ટલી બધાને જ લોન આપવાના છે। અપગ્રેડેશન માટે તો કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ જ છે, આ મંથ માર્ચ એન્ડ સુધી એ લોકો ઘણી બધી લોન આપવાની છે। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट आरओआई इसमें ऐसा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक का रहेगा, आपका सिविल स्कोर के ऊपर बैंक देगी, लेकिन वो डाल मिल वाला प्रोजेक्ट रहेगा तो वो एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में आएगा, मतलब वो कन्वर्जेंस वाली स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसमें वो आता है तो उनको बैंक को 9% से आपको इंटरेस्ट देना है और 9% के ऊपर 3% सबवेंशन, मतलब आपको 6% से लोन मिलेगा, वो दोनों कन्वर्जेंस करके, दो स्कीम कन्वर्जन करके इधर मिलेगा वो। मतलब वो डाल मिल, ऑयल मिल, वो जो प्राइमरी प्रोसेसिंग, फ्रूट पल्प रहता है, मैंगो का पल्प, ये जो प्राइमरी प्रोसेसिंग वाले जो बिजनेस है इसमें सिर्फ एआईएफ का भी बेनिफिट मिल सकता है। તમે જે કીધું કે ઘરેથી નાસ્તા નહીં કરતો હોય એ એક્સપાન્ડ કરા, તો એટલે એના માટે શું પ્રોસેસ છે? घर पे जो ड्राई नाश्ता बनाते हैं यानी फरसान, तो नमकीन के लिए हाँ। नमकीन बनाते हैं ना, तो उन लोग को तो हम लोग ये फूड लाइसेंस वो सब करके अप्लाई कर सकते हैं ना। वो बैठता है प्रोजेक्ट। એ લોકોને તો 100% મળશે, જે લોકોને પ્રોસેસમાં તમારે જગાતે સર આના પર તમને ગાઈડન્સ આપશે સર। बोला कोल्ड स्टोरेज का प्रोजेक्ट समझो 25 से 30 करोड़ का है, हाँ। मशीनरी 25 करोड़ की है और 10 करोड़ का बिल्डिंग बना रहे हैं। ये जो टोमेटो, ऑनियन, ये सबको कोल्ड स्टोरेज के लिए ऑलरेडी प्लॉट ले लिया है, तो ये कैसे आपका 10 क्या है वो हमारा ये जो स्कीम है पीएमएपीएमई, इसमें इंडिविजुअल बेनिफिशियरी के लिए 10 लाख है, नहीं तो आपको जो बड़ा वाला स्कीम मतलब वो इंडिविजुअल के लिए लेना है तो सीएम प्रोसेसिंग रहेगी दूसरे वाले, और नहीं, दूसरा भी वो जो पीएमएपी में ऐसी ही स्कीम सेंट्रल की, वो पीएमएपी में स्टेट गवर्नमेंट की सीएम प्रोसेसिंग है, इसमें हम 1.5 करोड़ तक का जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर 50 लाख तक की सब्सिडी मिलती है, उसमें 30% है और पीएमएपी में इसमें 35% है। ये स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम अलग है, मतलब वो नेचुरल आइसक्रीम आपने सुना होगा, और नेचुरल आइसक्रीम उन्होंने वो लिया है सीएम प्रोसेसिंग, इसमें 50 लाख तक का मिलता है सब्सिडी, मैक्सिमम क्या पे दोनों में आया है। 1 લાખથી લઈને 3 કરોડ સુધીની લોન માટે તમે અપ્લાય કરી શકો છો 30 करोड़ का प्रोजेक्ट, 30 करोड़ का प्रोजेक्ट, સર 30 કરોડ का कोल्ड स्टोरेज का तो 30 करोड़ के लिए आप एफपीओ बनाते तो ये आएगा, इसमें एफपीओ से आएगा, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओ बनाना पड़ेगी उसमें, नहीं तो मतलब वो डीआईसी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से अलग वाली स्कीम रहेगी एमएसएमई वाली, उसमें लेना पड़ेगा। वो स्कीम कौन सी है? कौन से? एफसीओ जो बोल रहे हो उसमें એફપીઓ का एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, जब हम 100 फार्मर मिलाकर जो एफपीओ बनाते हैं, जैसे अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहते हैं ना, वैसे ही फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी एक्ट में रजिस्टर रहती है वो बनाने के बाद में फिर हम लोग हाँ, तो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। नहीं, एक वो हो गया, अब ये जो पूछ रहे हैं कि 30 करोड़ का उसका कोल्ड स्टोरेज है, तब वो कौन सा स्कीम में बैठता है या नहीं बैठता? वो बैठता है ना एफपीओ, हाँ वो कुछ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में बैठता है ना, सीआईएफ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बोलते हैं उसे। मतलब प्राइवेट एंटरप्राइजेस के लिए नहीं है, वो फार्मर का एक ग्रुप होगा तो ही बैठे। हाँ, प्राइमर एफपीओ रहेगी उसमें, इंडिविजुअल नहीं ले सकते, इतना बड़ा प्रोजेक्ट के लिए इंडिविजुअल के लिए नहीं है। इंडिविजुअल का मतलब क्या होगा? पर्सनल के कॉर्पोरेट या प्राइवेट लिमिटेड, वो भी इंडिविजुअल में कंसिडर होती वो है, भी इंडिविजुअल में काम Individual. Basically, okay. सेल्फ हेल्प ग्रुप आल्सो इंडिविजुअल,
बेनिफिशियरी 10 लाख तक का। अच्छा। नहीं तो अभी वापिस में बोलोगे 30 करोड़ का जैसे इन्होंने कहा हाँ। है कि कोल्ड स्टोरेज है, उसके लिए आप फार्मर ये कंपलसरी क्या है, वो करोड़ में जो प्रोजेक्ट रहेगा ना, इसके लिए कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ऐसा एक पार्ट है स्कीम में, दूसरा है इंक्यूबेशन सेंटर, ऐसे 2 पार्ट जो है ना उसमें वो आएगा। वो कोल्ड स्टोरेज प्री हार्वेस्ट वाला जो कोल्ड चेन रहते हैं वो आएगा, सेपरेट पार्ट है। इसके लिए FPO बनाना पड़ेगी, वो ऐसा है। એટલે એમાં બી તમને હેલ્પ કરશે એ લોકો લોન અપ્લાય કરશે એટલે સેન્ક્શન સુધી પૂરું અપ્લાય તમને લોકોને હેલ્પ કરશે नहीं, मतलब दिमागમાં આવી ગઈ 100 फार्मर ने इकट्ठा केवी रीते ના करवाना ના एम एम तो नहीं ना। तो आप समझ लो ना, आप जैसे बोला 100 फार्मर्स है तो 100 फार्मर्स को इकट्ठा कैसे करें? हाँ, ये इधर नहीं होता, लेकिन वो अभी नासिक में जाएंगे आप तो उधर होता है, उधर पुणे में जाएंगे तो उधर फार्मर रहते हैं। इसमें क्या मतलब है, वो इतना बड़ा सब्सिडी दे रहे हैं तो फार्मर को थोड़ा सा बेनिफिट इसका मिलना चाहिए। फार्मर का जो प्रोड्यूस है उसके ऊपर प्रोसेस होनी चाहिए, इसलिए वो बड़े प्रोजेक्ट के लिए वो कैप है उसमें। 100 से आगे रहते हैं वो 500 तक ले सकते, मिनिमम 100। सीएम प्रोसेसिंग की ये जो दूसरी वाली स्कीम है स्टेट गवर्नमेंट की, वो थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ आगे थोड़ा। अभी ये 2027 तक वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने सीएम प्रोसेसिंग वाला स्कीम है, उसका GR है और वो वर्किंग है, लेकिन इसका जो सब प्रोसीजर है वो सब ऑफलाइन है। मतलब PMAPM में हम लोग PMAPM पोर्टल अभी आप गूगल में सर्च करेंगे तो भी आपको PMAPM का मिलेगा, लेकिन इस सीएम प्रोसेसिंग का सभी प्रोसीजर ऑफलाइन रहेगी। इसमें नेचुरल आइसक्रीम का मैंने बताया, वो जो 4 कोप में है उन्होंने इसमें इन्वॉल्वमेंट किया है। वो इसके ऊपर भी कमेटी रहते हैं, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडिंग एग्रीकल्चर ऑफिसर है वो हेड रहते हैं और उसके ऊपर वो स्क्रूटिनाइज करते हैं वो प्रपोजल। इसमें बड़ा वाला प्रपोजल रहेगा वो 2 करोड़ 2.5 करोड़ का रहेगा तो भी चलता है, उसके ऊपर वो 50 लाख की मैक्सिमम कैप है सब्सिडी की, 30% या मैक्सिमम 50 लाख। सर आपने एज लिमिट बताया। हाँ, सपोज पार्टनरशिप कंपनी है, एक पार्टनर बिलो 60 है और एक पार्टनर 65 अबाउट 65 है, तो एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? नहीं 65 से कम वाला हो उसके नाम से आप डाल सकते हो, उसके नाम से डाल सकते। इसमें क्या है कि बेनिफिशियरी इंडिविजुअल जो रहेगा तो इंडिविजुअल बेनिफिशियरी का डेफिनेशन स्कीम में दिया है कि मतलब वो पति पत्नी दोनों रहेंगे। उसके बाद जो बच्चे रहते हैं वो 18 साल के ऊपर के बच्चे हैं, उनका सेपरेट फैमिली कंसिडर किया है। 18 साल के ऊपर वाले जो बच्चे हैं वो सेपरेट रहते हैं, मतलब वो हमारा रेशन के ऊपर जो पहले हम क्या करते थे, रेशन कार्ड रहता ना उसके ऊपर से फैमिली कंसिडर करते थे। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में डेफिनेशन दिया है फैमिली की डेफिनेशन, मतलब एक फैमिली में भी 2 बेनिफिशियरी हो सकते हैं। इसमें बच्चे जो रहते हैं 18 साल के आगे एज वाले हैं, डाइवर्जन। सर मैरिज लिमिट 21 ईयर्स है लड़के की, तो 18 साल में फैमिली कैसे आ जाएगी? और सेंट्रल गवर्नमेंट दिया है वो बेनिफिट। આપણે છે ને પહેલાં યોજના બધી સમજી લઈએ અને પછી હું બધા ઓફિસરના તમને નંબર બી શેર કરીશ, પ્લસ બેંકના જે મેનેજર છે અને બેંક માટે જે આપણને હેલ્પ કરવાના છે એમનો નંબર બી શેર કરું છું, બધા લખી લેજો। તો જેને પર્સનલી ફૂલ ડિટેલમાં જાણવું હોય તો જાણી શકે છે। આપણે પહેલાં ડિટેલમાં બધું સમજી લઈએ। थैंक यू वेरी मच। હા, પેમ્પલેટ આપશો તમે, ગ્રુપમાં નાખી દઈશું અમે લોકો। બિઝનેસ ગ્રુપમાં બધા છે ને? PPT मिलेगी, लेकिन ये मराठी में है, हमें भी थोड़ा सा हिंदी है ना, हम लोग क्या है सगळ्याला मराठी येते सर इकडे, आम्ही महाराष्ट्र राहते ना, खाली असं आहे की थोडं पूर्ण समजायला आम्हाला हिंदी चालेल। शिवाजी महाराजची ते काय आम्हाला अडचण होते, म्हणजे मला थोडस हे झालं की ते हिंदीत आम्ही कसं रोजची ती तिथं वापरायची, ठाण्यात काही भाषा नाही ती, रोज मराठी असल्यामुळं हिंदीत बोलायचं म्हणलं की आमच्याकडून मराठी शब्द मिक्स होणार त्यात, असं ते आहे। આપણે પીપીટી પણ ગ્રુપમાં નાખી દઈશું, પ્લસ બધા ઓફિસરના નંબર બી નાખી દઈશું। हे मुख्यमंत्री अन्न प्रक्रिया योजना जी आहे सीएम प्रोसेस, અને સપોઝ કોઈ ગ્રુપમાં નથી
તો તમે જેજેસી નોર્થ ઈસ્ટની ઓફિસમાં જઈને પણ ડિટેલમાં નંબર અને પીપીટી લઈ શકો છો. सर कोई भी सब्सिडी जो स्कीम रहती है, जैसे नॉर्मली टाइम लिमिट रहता है, सब्सिडी में 2 महीना चला जाता है, 4 महीना चला जाता है, 5 महीना, अगर डॉक्यूमेंटेशन सब प्रॉपर होता है तो नॉर्मली कितना टाइम में आप 2 महीने लगते हैं इसमें, 2 महीने तक. ये जो है ना सभी प्रोसीजर सब ऑनलाइन है, आपको हर स्टेप पे ऑनलाइन मिलेगा देखने को. हाँ. अभी क्या प्रोसीजर चल रही है इसमें. अच्छा उसका पोर्टल ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है. सब्सिडी का मतलब 40% स्टेट गवर्नमेंट में देती है इसमें और 60% सेंट्रल का रहता है. तो हम आप जब आपको लोन सैंक्शन होगा इसके बाद वो प्रपोजल जो ऑनलाइन पुणे में जो एग्रीकल्चरल कमिश्नर बैठते हैं उधर से एक्सेल फाइल से फॉरवर्ड होता है ऑनलाइन और वो दिल्ली की तरफ से सब्सिडी आपके खाते में आती है. 2 महीना लगता है. 2 महीने लगते हैं. और वो स्टेटस भी वेरीफाई कर सकते हो. स्टेटस वेरीफाई कर सकते हैं आप इस स्कीम में. फाइल जैसे आपको कैसे बोलते हैं देखिए ये ऑफिसर ने आप अपना ट्रैक कर सकते हो, हाँ एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हो. इस सीएम प्रोसेसिंग में भी जो छोटे वाले रहते हैं 10 लाख के प्रोजेक्ट है या 2 करोड़ के, तो बड़े वाले भी प्रोजेक्ट इसमें आते हैं. मतलब वो जो पीएमएपी में जो बैठता है वो सब सीएम प्रोसेसिंग में आता है. मिल्क वाले रहते हैं, बेकरी वाले प्रोजेक्ट है, फिशरी वाले प्रोजेक्ट है, तो वो भी इस सीएम प्रोसेसिंग में आते हैं. आगे इधर दिया है इसकी भी सब्सिडी जो रहती है वो क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडेड सब्सिडी है. वो भी आपके लोन अकाउंट में आती है, 50 लाख मिलेगी. ये 50 लाख का जो सब्सिडी आपको मिलता है वो एक इंस्टॉलमेंट में नहीं मिलती, वो 2 इंस्टॉलमेंट में आपको मिलती है इधर स्कीम में. मतलब वो पीएमएपीएमई का रहता है तो एक ही इंस्टॉलमेंट में आपके लोन अकाउंट में मिलते हैं. लेकिन वो जो है पहला तो प्रोजेक्ट की मशीनरी खरीदने के बाद 25 लाख मिलती है और प्रोजेक्ट रन होने के बाद वो 25 लाख, मतलब वो 50 लाख का उनको 2 इंस्टॉलमेंट है सीएम प्रोसेस में. ये सभी डॉक्यूमेंट जो लगते हैं ना आपको पीपीटी शेयर होगी तो उसमें सीएम प्रोसेसिंग में आप इंटरेस्टेड है तो जो कोई डॉक्यूमेंट्स है वो सभी दिए हैं इसमें पीपीटी में ही. मतलब वो जो पीएमएपीएमई में हम प्रोजेक्ट बनाते हैं लेते हैं तो लीज एग्रीमेंट वाला लैंड है तो भी उसमें चलता है. सीएम प्रोसेसिंग में ऐसा है, खुद की लैंड है तो भी चलेगा, नहीं तो लीज एग्रीमेंट वाला 5 ईयर व 7 ईयर का वो भी चलता है. सब्सिडी सब टैक्स फ्री है. कौन सा सब्सिडी जो आती है गवर्नमेंट सब्सिडी टैक्स फ्री है, सब्सिडी पे टैक्स नहीं लगता. नहीं लगता. नहीं. ये जो एप्लीकेशन रहता है सीएम प्रोसेसिंग का वो ऑफलाइन बनाना पड़ता है पहला. इसमें आप जो मशीनरी खरीदने वाले हैं उसके कोटेशन और वो लोन सैंक्शन का जो है आप जिस बैंक से लोन लेने वाले हैं इनका इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर जो है वो लेना पड़ता है. इसके बाद आप कहाँ प्रोजेक्ट लेने वाले हैं उसका लैंड का डॉक्यूमेंट्स जो है वो सभी इकट्ठा करके वो कमिश्नर एग्रीकल्चर जो है पुणे वाले उधर वो भेजना पड़ता है वो प्रपोजल सीएम प्रोसेसिंग का. और उसके बाद वो इन प्रिंसिपल अप्रूवल ही वो भी देते हैं एक बार इस प्रोजेक्ट को. इसके बाद हम मशीनरी खरीदने हैं सीएम प्रोसेसिंग में. बड़े वाले प्रोजेक्ट रह गए 1 करोड़ 1.5 करोड़ का 2 करोड़ का तो आप इसमें स्कीम का लाभ ले सकते हैं. साहब इसमें मशीन का ऑर्डर का भी देने का आपका सैंक्शन होने के बाद, क्योंकि मशीनरी बनने को 6 महीना लगता है. ये जो पहला एक पीएमएपीएमई में मशीनरी का है ना वो पीएमएपीएमई में लोन सैंक्शन होने के बाद आप ले सकते हैं. मतलब 6 महीना दूसरा जाएगा. नहीं आपका प्रोजेक्ट अभी आप स्टार्ट करना है तो आप अभी से शुरुआत कर सकते हैं ना. इस प्रोजेक्ट में जो लेते हैं सीएम प्रोसेसिंग वाला उसमें इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेने के बाद वो प्रोसेस करना होगी क्योंकि ये ऑफलाइन है. लेकिन हाँ तो क्या है, जैसे अभी एक्सटेंशन करना है, एक्सटेंशन भी कवर्ड है. कवर्ड है. अभी एक्सटेंशन कवर्ड है और ये अभी लास्ट जैसे आपने कहा कि 1 साल तक एक्सटेंशन किया होगा. हाँ स्कीम का सीएम प्रोसेस पीएमएपीएमई का हाँ. तो 1 साल में तो हो जाएगा ना. ये क्या है आप परचेस वाले मशीनरी जो है इसके लिए 6 महीने लगेंगे लेकिन आप इधर सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी करके पीएमएपीएमई का वो जो लोन सैंक्शन करके उसके बाद प्रोसेस कर सकते हैं. પછી પણ મશીનરી આવીને તો પણ તમે એપ્લાય કરી શકો છો. તમારું જે પણ આ પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ તમે રેડી કરીને એપ્લાય કરો
બેંકવાળા વિઝિટ કરીને તમારી લોન સેન્કશન કરી નાખશે અને તમારું જ્યારે બેંક મશીનરીનું અમાઉન્ટ રિડ્યુસ હશે ત્યારે એ લોકો આવીને ખાલી ચેક કરીને જશે. सीएम प्रोसेसिंग की स्कीम जो है इसमें मतलब सिविल कंस्ट्रक्शन और मशीनरी इसका रेशो 60-40 है. मतलब 60% मशीनरी और 40% बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. इसमें रेशो थोड़ा अलग है. पीएमएपी में करते हैं तो 70-30 है, इसमें 60-40 है. सोलर बेस्ड मतलब वो हमारी ये तो मिलेगी, लेकिन वो अलग डिपार्टमेंट जो है रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट, वहाँ से अलग मिलेगी. वो इंटरेस्ट में सबवेंशन ऐसा कोई है स्कीम उनकी. મેન્યુફેક્ચરિંગ ફૂડ પ્રોડક્ટથી લઈને સોલર 200+ આ વસ્તુથી માટે આપણે લોન લઈ શકીએ છીએ. એટલે એનું પણ અમે તમને એક પૂરું પીપીટી આપી દઈએ છીએ કે કયા બિઝનેસ માટે તમે લોન અપ્લાય કરી શકો છો. એનું પણ એક ડિટેલ અમે તમને આપી દઈએ છીએ. સર वेजिटेबल का सोलर ड्राइंग रहता है ना, वो आएगा. પહેલા આપણે એક લેક્ચર मीन्स पूरा डिटेल में इसमें एक सीएम प्रोसेसिंग वाले में एक इनकी ये रहेगी कि 40% वाला जो रॉ मटेरियल है वो फार्मर से परचेस करना है. ऐसा इसमें एक मतलब ये स्मॉल प्रेजेंटेशन है. इसमें एक ही महत्वपूर्ण है, मतलब 30% सब्सिडी या 50 लाख मैक्सिमम कैप 2 करोड़ तक का प्रोजेक्ट चलता है. लेकिन इसमें पहला बैंक इन प्रिंसिपल अप्रूवल लगता है इसमें, और वो हर एक चीज जो है जो एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग वाली रहेगी वो आएगी सीएम प्रोसेसिंग में भी. तीसरा एक वाला ये जो हमने बताया 2 स्कीम है, उसके लिए कन्वर्जेंस वाली स्कीम है एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. ये सेंट्रल गवर्नमेंट के है, लेकिन ये बैंक से ऑपरेट होती है. मतलब हम लोग लोन लेते हैं, लोन के ऊपर 3% का सबवेंशन. जो प्राइमरी प्रोसेसिंग वाले जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है उसके ऊपर ये बैंक 3% का सबवेंशन देती है इसमें. और कोल्ड चेन रहती है, कोल्ड स्टोरेज रहता है. इसके लिए जो आप लोगों ने लोन लिया होगा कि रिपर वैन रहते हैं, तो ऐसे जो एआईएफ में इन्वॉल्व किए हुए प्रोजेक्ट है इसमें आपको हमारे स्कीम में बेनिफिट लिया नहीं लिया तो भी चलेगा, लेकिन एआईएफ में आप ले सकते हैं उसमें. मतलब वो इंटरेस्ट में सबवेंशन बैंक लिंक्ड प्रोजेक्ट, मतलब बैंक में लोन लेते हैं तो लिया हुआ लोन के लिए भी मिल सकता है, लेकिन वो प्रोजेक्ट की जो कंपोनेंट है वो इस स्कीम में रहना चाहिए, प्राइमरी प्रोसेसिंग वाला. 2020-21 से 32-33 तक इस स्कीम का जो पीरियड है वो दिया है. और इसमें CGTMSE ट्रस्ट रहती है, मतलब बैंक गारंटी के लिए CGTMSE ट्रस्ट का यूज करते हैं. तो 1 साल के लिए CGTMSE ट्रस्ट की जो फी रहती है वो बेनिफिशियरी को देना पड़ता है बेनिफिशियरी को. तो CGTMSE ट्रस्ट की फी भी स्कीम में आपको रिटर्न मिलती है. मतलब ये इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, CGTMSE की फी वो भी वापस आपको मिल सकती है इस स्कीम से. ये सारे प्रोजेक्ट आते हैं इसमें. मतलब वेयर हाउस है, साइलोज है, पैक हाउस है, क्वालिटी फैसिलिटी वाला सेंटर रहता है, ग्रेडिंग फैसिलिटी है, कोल्ड चेन, लॉजिस्टिक, कोल्ड स्टोरेज है, प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर है, राइपनिंग चैम्बर, शुगर केन हार्वेस्टिंग मशीन, कस्टम हायरिंग सेंटर. ये मशीनरी वाला लेते हैं तो कस्टम हायरिंग सेंटर में आता है. इसमें भी एलिजिबिलिटी दी है. इंडिविजुअल रहते हैं, फार्मर्स है, कम्युनिटी ग्रुप है, पीओ सेल्फ हेल्प ग्रुप, कोऑपरेटिव ग्रुप्स है, नेशनल एंड स्टेट लेवल फेडरेशंस है, वो सभी इसमें लिया है. अभी नया वाला वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाला है, रिमोट सेंसिंग वाला, वो भी इसमें ऐड किया है. ड्रोन परचेस के लिए भी इस सबवेंशन मिलता है. फार्मर के लिए शुगर केन हार्वेस्टिंग मशीनरी रहती है, वो भी इस एआईएफ स्कीम में कन्वर्ट है. हाइड्रोपोनिक फार्मिंग रहते हैं, मशरूम फार्मिंग है, वर्टिकल फार्मिंग, एरोपोनिक फार्मिंग, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, ये भी पार्ट कवर है.
अभी मशरूम का भी प्रोजेक्ट पीएमएपीएमई में प्रोसेसिंग वाला रहेगा तो भी आ सकता है, ड्राई मशरूम तो वो भी आएगा पीएमएपीएमई में, और इसमें भी आएगा वो एआईएफ में। थोड़ा ये वाला देखो, ये मिल वाला रहता है, आटा मेकिंग वाला रहता है, वो प्रोजेक्ट आते हैं इसमें। ऑयल सीड वाला ऑयल मिल रहेगी वो आएगी। मसाला मेकिंग वाला यूनिट जो रहता है स्पाइसेस वाला वो भी आएगा इसमें। शुगर केन वाला गुड़ का पाउडर, और एक कॉटन का रहेगा, और कैशू प्रोसेसिंग। ये प्राइमरी प्रोसेसिंग वाले जो है वो ही इसमें। ये सभी बेनिफिशियरी दिए हैं, कौन कौन से बेनिफिशियरी इसमें आ सकते हैं, स्टार्टर्स वाले भी आ सकते हैं। ये जो एआईएफ स्कीम है हर एक बैंक को लिंक्ड है, मतलब वो हमारे कोऑपरेटिव बैंक रहेगी, इसमें भी इसका बेनिफिट मिलेगा। मतलब जो आपने ऑलरेडी प्राइमरी प्रोसेसिंग का लोन लिया है और अभी तक आप 11 या 12% से इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो अब ये लोन एआईएफ में कन्वर्ट करके 9% का कैप रहता है इस पर। बैंक को ही 9% का कैप है, 9% की कैप के ऊपर 3% सबवेंशन, मतलब 6% से आपको ये लोन मिलेगा, इंटरेस्ट पर मिलेगा इसमें। तो बैंक दिया है सभी, कौन कौन सी बैंक है, और ये 2 करोड़ तक का लोन के लिए है, मतलब वो 2 करोड़ तक के जो लोन है उसके ऊपर 3% का ये सबवेंशन मिल सकता है। इस प्रोजेक्ट में से 10% का बेनिफिशियरी का कंट्रीब्यूशन, मतलब एक प्रोजेक्ट में जब आप लोन लेते हैं तो 10% कंट्रीब्यूशन बेनिफिशियरी का और 90% तक का लोन, ऐसा ही सेम ही है पीएमएपीएमई की तरह। आगे ये प्रोसीजर ऑनलाइन है, वो जिस बैंक से आप लोन लेते हैं वहाँ से ही आपको ये अप्लाई करके मिलेगा। आप नया वाला प्रोजेक्ट लेते हैं तो आप खुद ही अप्लाई कर सकते हैं एआईएफ स्कीम के लिए। पीएमएपीएमई और एआईएफ ये दोनों स्कीम है ना, आप गूगल पे डाल सर्च करते हैं तो आपको सभी इसका इंफॉर्मेशन मिल सकता है। एआईएफ भी मिलेगा। इतना है 3, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की 2 है, पीएमएपीएमई और एआईएफ, और हमारे स्टेट गवर्नमेंट की सीएम प्रोसेसिंग। इस 3 स्कीम के बारे में बताया आपको मैंने। थोड़ा सा कोई आपको और कोई चाहिए तो पूछ सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट के लिए मैं अप्लाई करूंगा, तो आपने जो 3 दिन का ट्रेनिंग बोला है वो उसी प्रोडक्ट के लिए भी है? हाँ, मतलब जो बेनिफिशियरी पीएमएपीएमई स्कीम में अप्लाई किया है हमारी तरफ, कैसा है प्रोसीजर, ऐसा है कि पहले तो आप कोटेशन लेकर सभी प्रोजेक्ट फाइनल करेंगे, कौन सा प्रोजेक्ट लेना है। अब वो अपग्रेडेशन वाला हो, एक्सटेंशन वाला हो या मॉडर्नाइजेशन वाला हो, वो प्रोडक्ट फाइनल करने के बाद आप कौन सी मशीनरी लेना है, कौन सा सिविल वर्क का काम करने वाले, वो सब बनाएंगे। वो आप डीआरपी के पास डीआरपी जो रहेगा हमारे, वो डीआरपी आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट करेंगे। वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर, ऑनलाइन ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, वो पोर्टल पर ही फिल करते। तो फिल करने के बाद डीआरपी का प्रोजेक्ट रिपोर्ट आएगा तो हमारे पास आएगा। डीआरपी वो उनके लॉगिन से हमारे पास भेजेंगे। हमारे थाने में ऑफिस में हम वो स्क्रूटिनी करेंगे। इसकी स्क्रूटिनी मतलब ऐसे रहती है कि वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का अप्रूवल मिला उसे, डीएलसी रिकमेंडेशन, तो हम देते हैं उधर थाने में स्क्रूटिनाइज करके। डीएलसी रिकमेंडेशन देने के बाद वो आपने जो बैंक चॉइस की होगी उस बैंक में जाएगा। इसमें बैंक का भी प्रेफरेंस आपको 2 बैंक का दिया है, पहले बैंक और सेकंड ब्रांच। मतलब वो पहले बैंक ने आपको रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल आपका लोन के लिए, तो आप वो प्रपोजल दूसरे ब्रांच में जाएगा। दूसरे ब्रांच ने भी नहीं किया तो रिजेक्ट होकर आपको फिर अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये 2 बैंक में लोन आपको सैंक्शन होने के लिए इसमें चांसेस रहेंगे। मतलब वो पहले वाले ने नहीं किया तो सेकंड में प्रेफरेंस ले सकते। इसके बाद सैंक्शन होने के बाद लोन सैंक्शन जो लेटर है, बैंक को भी ये पीएमएपीएमई का पोर्टल के लिए लॉगिन यूजर आईडी पासवर्ड है, वो लॉगिन करके उन्होंने जब सैंक्शन लेटर अपलोड करेंगे पोर्टल पर, तो सैंक्शन लेटर अपलोड करने के बाद आपको सब्सिडी के लिए रिकमेंडेशन होगा। कहने का ये था, जैसे एक
पर्टिकुलर इनका हाँ, कोई सर। सब्सिडी चाहिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, तो वो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी को 3 दिन का जो आप प्रोग्राम हाँ। એક મિનિટ એક સર उसमें મેં બતાવ્યું ઉनको હવે સમજો કે તમારે એક બિઝનેસ કરવો છે, તમારા માઇન્ડમાં ડિસાઇડ છે કે મારે શેનો બિઝનેસ કરવો છે, ફૂડ રિલેટેડ કરવો છે કંઈ, તમે એની એપ્લિકેશન નાખી કે મારે ફૂડ રિલેટેડ બિઝનેસ કરવો છે. હવે આ જે ટ્રેનિંગ છે ને એમાં તમારી સાથે જે 50 જણા જોડાયા હશે ને એ બધા, હવે સમજો હું હતી તો મારી સાથે હતા ને એ લોકોની ફ્લોર મિલ હતી, એટલે અલગ અલગ ટાઈપના એ લોકો લોટ બનાવીને સપ્લાય કરતા હતા. એક જણનું હતું ફરસાણનું એટલે નમકીનનું કારખાનું હતું મારે, એટલે આ ઘણા બધા માર્કેટમાં એ લોકોના પ્રોડક્ટ છે, એ લોકો બધા ટ્રેનિંગ ગવર્મેન્ટનું એમ કે સર્ટિફિકેટ માટે, પણ એમાં તમને A to Z ફૂડ રિલેટેડ પૂરું ડિટેલમાં આનું નોલેજ પ્લસ ટ્રેનિંગ મળશે કે કેવી રીતે તમે સ્ટાર્ટ કરશો અને કેવી રીતે એને માર્કેટમાં લાવશો, પૂરી આની ટ્રેનિંગ મળશે તમને. મતલબ જેવી રીતે તમે એપ્લાય કરો છો એવી હા. રીતે તમે ટ્રેનિંગમાં તમે એટલે તમારી સાથે તમારા मतलब એક ये પ્રોડક્ટ क्या है જનરલાઇઝ હોય. હવે મારી સાથે ઘણી લેડીઝ હતી, એમાં એ લોકોએ ઓઇલ મશીન લીધું હતું, તો ઓઇલ બનાવવા માટે ફ્લોર મિલવાળા હતા, ફરસાણના કારખાનાવાળા હતા, જે લેડીઝો ઘરેથી પોતાનો બિઝનેસ કરતી હતી એ લોકો પણ હતા, એટલે જેને એક્સપાન્ડ કરવો હતો, સ્ટાર્ટઅપવાળા બી હતા જેને લોન નાખેલી છે એ લોકો પણ હતા. પણ આમાં ડિટેલ તમને ખાલી તમારા પ્રોડક્ટ પૂરતું નહીં, જનરલ બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કેવી રીતે કરવો અને કેવી રીતે આપણે એને ગ્રો કરવો એની પૂરી ડિટેલમાં ટ્રેનિંગ મળશે. जो 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 बेनिफिशियरी है उनके प्रपोजल को डीएलसी रिकमेंडेशन मिला है, वो ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल है. मतलब तुम आपका प्रोजेक्ट बनाएगा डीआरपी, वो हमारे पास आएगा, हम रिकमेंडेशन देके वो बैंक के पास भेजेंगे, तो ये आप ट्रेनिंग હા, के लिए એટલે તમે એલિજિબલ બી ક્યારે થશો જ્યારે ગવર્મેન્ટ તમને અપ્રુવલ આપશે ત્યારે. એના માટે તમે અપ્લાય કરી દીધું ને તમને ટ્રેનિંગ મળી ગઈ, ઇટ્સ નોટ પોસિબલ. ગવર્મેન્ટનું એપ્રુવલ આવશે, તમને કોલ આવશે ટ્રેનિંગ માટે, ત્યારે તમને લોન મળશે, ટ્રેનિંગ મળશે. ટ્રેનિંગમાં કઈ લેંગ્વેજમાં? હિન્દી, મરાઠી, ઇંગ્લિશ. 3 days का ट्रेनिंग रहेगा. उसमें आपको 3 days के ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी मिलेगा. वो सर्टिफिकेट आपको बैंक लोन के लिए थोड़ा सा લેંગ્વેજ પૂછા था कौन सा નહીં નહીં, ગુજરાતી નહીં હોય, બાકી હિન્દી, મરાઠી ને ઇંગ્લિશ. કારણ કે હાયર ઓથોરિટીઝથી જે બધા ઓફિસર આવે છે, મોટા મોટા સેમિનાર ને એ લોકો લે છે, એટલે સમજો કે આપણા સેશનમાં મરાઠીવાળા ઓછા છે, ગુજરાતીમાં નહીં જ હોય, મરાઠીવાળા ઓછા છે ને અધર કાસ્ટ છે તો ઇંગ્લિશમાં પૂરું સેશન થશે, એવી રીતનું છે. ફૂલ ડે ટ્રેનિંગ 11 to 5 વિથ ફૂડ. એ લોકો તમને પૂછી લેશે કે તમને કયા ટાઈપનું જમવાનું જોઈએ છે, શું વેજ જમવાનું જ હોય છે, પણ એ તમારો ફ્રી ઓફ કોસ્ટ છે, પણ તમારે કેવું જરૂરી છે એટલે ખાવાનું બગડે નહીં એમ. એ થાનામાં થાણામાં હોય છે. સર આગે કાપી ગ્રુપનો હશે તો એ લોકો એપ્લાય કરે પછી એપ્રુવલ આવે એના માટે ટ્રેનિંગ નહીં, તમે અપ્લાય કરશો બેંકની લોન માટે તો તમે બંને જણા, હા, એટલે આપણી વચ્ચે છે ને જે આ યોજનાના ડીઆરપી છે એટલે તમને આમાં હેલ્પ કરશે કે કેવી રીતે તમારે અપ્લાય કરવાનું છે, એ પણ તમને guidance આપશે. લખી લીધું? તો 2 જણ અલગ અલગ એપ્લિકેશન નાખી શકે ને, નાખી શકે. યસ, એક જ ઘરના 2 વ્યક્તિ. First of all the respected, I welcome you from our agriculture department, and also thankful to all the hosts who organized this workshop. Very good workshop. I really appreciate all the participants. मराठीत बोलत चालेल का सर? आता आपण प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना या योजनेचं आपलं कार्यशाळा चालू आहे. या जी योजना आहे, स्कीम आहे, या स्कीमच्या शब्दामध्येच त्याचा अर्थ आहे जे जे आपण प्रोसेस्ड फूड खातो त्याचा सर्वांचा समावेश या योजनेत आलेला आहे. म्हणजे स्नॅक्स आले आपले सगळ्या प्रकारचे, पोटॅटो चिप्स, फ्रुट्स पासून मँगो, कॅशो, चिकू यापासून जे प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स आहेत, जॅम, जेली, चटनीज, ऑल द प्रोडक्ट्स which are incorporated in this scheme.
सिरियल क्रॉप्स म्हणजे भात, नागली, भातापासून पोहे, नाचणीपासून नाचणी, बिस्किट्स, ऑल माल्ट्स सगळे आले, पावडर्स, विविध प्रकारची पीठ म्हणजे फ्लोर्स, पॅकिंग. फक्त स्कीम मधला फरक आहे की समजा वडापाव आहे, समोसा आहे, हा मायक्रो फूड प्रोसेसिंग मध्ये येत नाही, परंतु एक छोटा समोसा असतो, पॅकिंग मध्ये असते, लहान साईज, तो येतो, ड्राय समोसा. येस, म्हणजे ज्या प्रोडक्टचा लाईफ आपण वाढवतोय ते ऑल द प्रोडक्ट्स या स्कीम मध्ये येतात. याच्यानंतर मिल्क प्रोडक्ट्स मध्ये आईस्क्रीम, पनीर, नुसतं मिल्क येणार नाही, दूध येणार नाही, परंतु पनीर येईल, आईस्क्रीम्स, म्हणजे ज्याच्यामध्ये आपण प्रोसेस करतो, पॅकिंग करतो, ग्रेडिंग, पॅकिंग आणि मग विकतो, सेल करतो आणि त्याचं त्या प्रोडक्टचा लाईफ आणि क्वालिटी वाढवतोय, ते प्रोडक्ट्स याच्या स्कीम मध्ये घेतलेले आहेत. त्यानंतर कोण कोण इलिजिबल आहेत ते तर सांगून दिले. ज्यांचं वय 18 वर्ष पूर्ण आहे, लेडी असो, पुरुष असो, स्त्री असो. महिला बचत गट 10 लोकांचा असतो, तो सुद्धा याच्यामध्ये घेऊ शकतो. प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी, ती कोऑपरेटिव्ह संस्था असेल, ती सुद्धा या स्कीम मध्ये भाग घेऊ शकतात. याची जी प्रोसिजर आहे, काय प्रोसिजर आहे स्कीम मध्ये, आपल्याला तुम्हाला भाग घ्यायचे, कसं घेणार, कसं करणार. तर यामध्ये ऍग्रिकल्चर डिपार्टमेंट, आमचा जो रोल आहे तो पब्लिसिटी ऑफ द स्कीम अँड जे ऍक्च्युअली काम करायचे डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन म्हणजे DRP, जे गव्हर्नमेंटनी नेमलेले आहेत या स्कीमसाठी. गव्हर्नमेंट हॅज अपॉइंटेड these DRPs and we have to not a single rupee, we have to not give a single rupee to these persons for processing this. This is important thing. आपल्याला एकही रुपया या DRP ला द्यायचं नाही, कोणालाच द्यायचं नाही, इव्हन कोणत्याही प्रकारची प्रोसेसिंग फी या स्कीम मध्ये नाही. आता मी प्रोसिजर सांगतो. आता एखादी व्यक्ती आहे, तुमच्यापैकी एखाद्याला बिझनेस करायचा आहे, काय करायचं, हा फॉर्म आहे साधा, अर्ज ऍप्लिकेशन आहे. याच्यावर काय काय आहे, आपला अर्ज, ऍप्लिकंट नेम, ऍप्लिकंट्स फुल नेम म्हणजे मदर नेम, फादर नेम, ऍप्लिकंट्स ऍड्रेस आहे, तर मोबाईल नंबर आहे, तुमचं बर्थ डेट आहे. बर्थ डेट नंतर आता शिक्षणाची तर अटच नाही, इलिटरेट पर्सन कॅन टेक पार्ट इन दिस स्कीम. नंतर युअर आधार नंबर अँड पॅन कार्ड नंबर. नंतर ईमेल ID इफ यू हॅव. देन बँक अकाउंट डिटेल्स, आपला खाता, आपला अकाउंट कोणत्या बँकेत आहे आणि तुम्ही कोणत्या बँकेमधून कर्ज घेण्यास इच्छुक आहात. दिस इज बँक लिंक प्रपोजल. सो आता यामध्ये 2 बँका द्यायच्या, दोन्ही बँकेचं म्हणजे 1 नंबर 2 नंबर. 1 नंबर याच्यासाठी एका बँकेने रिजेक्ट केलं प्रपोजल तर दुसऱ्या बँकेत ते आपण अप्लाय करू शकतो. त्यानंतर तुमची व्यवसायाची जागा कुठे आहे, तो ऍड्रेस. नंतर यामध्ये हा अर्ज भरून द्यायचा, त्याच्यासोबत आपला आधार कार्ड, पॅन कार्ड. आता आपण जिथे बिझनेस करणार आहोत तिथलं रेंट ऍग्रीमेंट असू शकतो किंवा स्वतःची जागा असेल तर असेसमेंट उतारा. त्याच्यानंतर उद्यम आधार आणि याच्या व्यतिरिक्त काही डॉक्युमेंट्स, मला बँकेचं पासबुक झेरॉक्स ते लागेल. तर या प्रकारे आपल्याला ही आपण नवीन बिझनेस चालू करतो, ह्या गोष्टी लागतील. ह्या ऍप्लिकेशन सोबत आणि महत्वाचं कोटेशन. आता यामध्ये तुम्हाला जो बिझनेस करायचा आहे त्याचं कोटेशन तुम्ही महाराष्ट्रातून घ्या, गुजरातमधून घ्या, राजस्थानमधून घ्या, कुठूनही तुम्ही अप्लाय करू शकता. हे घेताना विथ GST घ्यायचे कोटेशन, आणि कोटेशन यासोबत द्यायचे. हे सगळे डॉक्युमेंट्स आमच्याकडे दिल्यानंतर आम्ही काय करणार, ऍग्रिकल्चर डिपार्टमेंट आम्ही DRP कडे देतो. DRPचा रोल असा आहे, हे सगळे डॉक्युमेंट्स तो ऑनलाईन करणे, लाभार्थीचे डॉक्युमेंट्स ऑनलाईन भरणे आणि त्याचा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार करणे. तुम्ही कोटेशन देताय त्या बेसवर तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार करणार आणि प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करणार. विदिन 8 days हे प्रपोजल आमचं ऍग्रिकल्चर डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट ऍग्रिकल्चर ऑफिसर ठाणे इथे जात आहे. म्हणजे मुंबई सबअर्बन अँड ठाणे डिस्ट्रिक्ट या तिन्ही जिल्ह्याचे प्रपोजल्स या ठिकाणी जातात. आमचे माने सर आहेत, आता ज्याने लेक्चर दिले ते स्क्रुटिनाइज करतात हे प्रपोजल्स ऑनलाईन आणि विदिन 8 days आता टेक्निकल सँक्शन दिलं जाते. जर त्यात काही क्युरीज असतील तर ते रिसेंड होते, रिबॅक होते. परंतु ऑनलाईन
प्रपोजल सँक्शन केल्यानंतर हे बँकेकडे जाते. तुम्ही फर्स्ट प्रिफरन्स ज्या बँकेला दिलेला आहे, आता बँकेला दिल्यानंतर बँकेचा रोल काय आहे? बँक तुमचं सिबिल चेक करणार आहे आणि तुम्ही त्यावेळेस फक्त एक विचारून घ्यायचं आहे बँकेला की तुम्ही आम्हाला बँक लोन द्याल का. कारण शेवटी ते महत्वाचं आहे. आपण बँक प्रपोजल ऑनलाईन केलं तर नंतर जर विचारण्यात मतलब नाही, अगोदर थोडंसं विचारून घ्यायचं माझं प्रपोजल आम्हाला करायचं आहे. याच्यामध्ये कॅनरा बँक, बँक ऑफ बडोदा यांनी खूप चांगलं म्हणजे खूप कोऑपरेशन आहे. याच्यामध्ये आमचे मॅक्झिमम प्रपोजल्स आहेत या बँकेतलेच आहेत नॅशनलाइज बँकेमध्ये. तर आता हे जी स्कीम मधलं जे हे आहे प्रपोजल्स आहेत याच्यामध्ये 90% बँक लिंक्ड प्रपोजल, 90% पर्यंत आपल्याला मॅक्झिमम लोन मिळू शकतं. यामध्ये म्हणजे 10% तुमचा वाटा आला, हे साहजिकच आहे. परंतु त्याच्यामध्ये तुमच्याकडे पैसे असले तर तुम्ही 30% जरी अमाऊंट भरली तर 70% सुद्धा लोन होऊ शकते. म्हणजे ते तुमच्यावर डिपेंड आहे. परंतु बँक लिंकडच प्रपोजल आहे, म्हणजे विदाउट बँक लिंकड नाही, हे महत्वाचं. आता यामध्ये काय होतंय, एक उदाहरण देतो. एक 2 लाखाचा किंवा 5 लाखाचं तुम्ही प्रपोजल केलं, याच्यामध्ये 90% तुम्ही स्कीम 90% लोन केले, त्याच्यामध्ये 50% मिनिमम तुमच्या अकाउंटला आहेत. बँकेत गेल्यानंतर बँक प्रपोजल मंजूर करेल आणि जे कोटेशन जिथलं आहे त्यांना पेमेंट बँक करेल. 5 लाखाचं पेमेंट जे आहे ते बँक सरळ त्याला करेल. बँकेने संबंधित कोटेशन कॉन्ट्रॅक्टरला पेमेंट केल्यानंतर मशीनचा प्रोव्हिजन, मशीन जे आहे ते तुम्ही तिथून आणायचे आहेत किंवा ते प्रोव्हाइड करणार तुम्हाला. तुम्ही मशीन घेऊन तुमचा उद्योग चालू करायचा आहे. उद्योग चालू केल्यानंतर DRP काय करतायत, DRP एक फोटो काढतात. कुठला? ऑन स्पॉट. तिथे लॅटलॉंग फोटो घेणार तुमचा मशीन विथ मशीन किंवा तुमचं बिझनेस चालू झाल्याचा, आणि ते फोटो या जे आहे साईटवर अपलोड पण केलं जात आहे. प्लस बँक हे डिस्बर्समेंट आणि ही प्रोसिजर बँक सुद्धा ऑनलाईन करते आणि ऑनलाईन केल्यानंतरच मग ती सबसिडी येते. जोपर्यंत बँक भरत नाही तोपर्यंत सबसिडी येत नाही, हे लक्षात ठेवा. कारण हे बँक याच्या सिस्टीम अशी आहे. सर एक विचारते, काही महिला आहे जो घरातून बिझनेस करायला इंटरेस्टेड है, तो चक्की है घर का जिसका, तो वो आटा बनाने का काम कर सकते हैं ना? नहीं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? नाही असं आहे. आटा सुटा बनून फक्त दळून देणे हे यात येत नाही. परंतु जर आटा तुम्ही पॅकिंग स्वरूपात विकत असाल तर बसते. समज कमर्शियल म्हणजे विकायचं फक्त आटा. बऱ्याचशा ग्रामीण भागामध्ये किंवा इथे शहरामध्ये सुद्धा फक्त गहू आणतात, भरडलं जाऊन पीठ करलं आणि घेतलं जातं चपाती बनवायला, ते बसत नाही. परंतु तुम्ही जर पॅकिंग मध्ये विकलं, काही लोक मी पाहिले मुंबईमध्ये, काही लोक पीठ अर्धा 1-1 किलोचे पॅकेट्स करतात आणि विकतात, ते बसते. हा फरक आहे थोडस. त्याला आपण नाव स्वतःच आपण देऊ शकतो मॅडम. दॅट इज आवर चॉईस. कंपल्सरी काय एवढं छोट्या याला प्रोडक्टला नाहीये. 1-2 લાખचा प्रपोजल असलं तर काय आम्ही 5 લાખના પ્રપોઝલ માટે બ્રાન્ડિંગ અને જરૂરી નથી, પેકેજિંગ મસ્ટ. અને તમે એટલે આ આપણું મેઇન મોટિવ શું છે બિઝનેસનું, કે લેડીઝો બી ઘરે બેસીને કંઈક કરી શકે. હવે સમજો કે કોઈ લેડીઝના ઘરે ચક્કી છે જ, પણ એને હવે એમ થયું કે મારે આનું પ્રોફેશન બનાવવું છે, તો હવે તમે સિમ્પલ અત્યાર સુધી લોન બધાને દળીને આપી દેતા હતા, એના કરતાં એને એક પેકેજિંગ કરીને આપો અને પછી લોન માટે અપ્લાય કરો, તો આ તમારો એક બિઝનેસ સ્ટાર્ટ થઈ ગયો. आता यामध्ये पापड, आता आपण पापड बनवतो, पापड बनवायची एक मशीन आहे. तर पापड बनवायच्या मशीन मध्ये म्हणजे घरगुती म्हणजे ज्या ग्रामीण भागातल्या महिला त्या बहुतांश हे घेतात. तर यामध्ये पापड बनवायची मशीन मध्ये जे डाळ आहेत त्यामध्ये पाणीपुरीची पण डाळ आहे, भाकरी बनवण्याची पण आहे. तर बऱ्याचशा महिला पापड એક જ મશીનમાંથી આપણે અલગ અલગ ટાઈપની બ્લેડ નાખીને એનો પ્રોડક્ટ બનાવીને પॅकिंग કરીને આપણે બનાવી શકીએ. त्यामध्ये आता समजा नुसत्या भाकरी बनवणं आहे तर ते याच्यामध्ये बसत नाही. परंतु तुम्ही पापड उद्योग नाव दिलं, पापड बनवून सेल केला आणि त्याच्या सोबत नंतर असिस्टंट म्हणून हे केलं तरी ते चालतंय. परंतु मेन बिझनेस आपला पापड उद्योग असा एनी टाइप ऑफ पापड, उडद पापड, राईस पापड. तर आता आपण कुठे होतो फोटो अपलोड केल्यानंतर सबसिडी आपली येते. आता याच्यामध्ये सबसिडी जमा झाल्यानंतर जितकी
5 लाखाचं प्रपोजल असेल किंवा 2 लाखाचं असेल तर 35,70,000 रुपये सबसिडी जमा झाली. तुमचं जे टोटल आहे अमाऊंट त्यातून ते एफडी सारखी राहते, त्याला इंटरेस्ट दिला जात नाही सबसिडीला बँकेतून, 3 वर्ष राहते ती. परंतु त्या सबसिडीवर हे नाहीये, इंटरेस्ट दिला जात नाही, परंतु तेवढी अमाऊंटवर जे व्याज आहे ते मायनस करून जो व्याज आकारणी होते तेवढी ती ऍडजस्ट केली जाते, म्हणजे कमी केली तेवढे मुद्दल जी शिल्लक राहते प्रिन्सिपल ती आहे. तर याच्यामध्ये आणि मशिनरीच्या किमतीवर आहे. आणि दुसरी गोष्ट, मशिनरीचं कोटेशन तुम्ही आम्हाला देताय ते काय आम्ही तुम्हाला चॅलेंज करणार नाही का हे 2 लाखाचं आहे का 2.5 लाखाचं आहे कोटेशन, हा, कारण ते कुठूनही तुम्ही घेऊ शकता, इट इज युअर चॉईस. आणि यामध्ये अशा प्रकारची ही प्रोसिजर म्हणजे सांगितलेली. आणि प्रोडक्ट्स मध्ये सगळे आता सिरियल्स क्रॉप्स आणि फ्रूट क्रॉप्स व्हेजिटेबल्स हे सगळे येतात. आणि मिल्क अँड मिल्क प्रोडक्ट्स, मसाले म्हणजे मसाला म्हणजे हळद आणि मसाले हे सुद्धा पॅकिंग स्वरूपातले ते सुद्धा यामध्ये येतात. आता याच्यामध्ये ही झाली आपण फ्रेश एंटरप्रिनर म्हणजे फ्रेश बिझनेस झाला. एखाद्याचा जुना बिझनेस आहे, चालू आहे, करंट आहे, चालू आहे, त्याची एखादी मशीन त्याला खराब झाली किंवा त्याला एक्सपान्शन करायचे तर तो सुद्धा या बिझनेसमध्ये आपण घेऊ शकतो. हा, फक्त ते मशीन त्याला नव्याने घ्यावी लागेल आणि प्रोसिजर सेमच आहे. त्याच्यामध्ये फक्त एक ऍड होईल त्याचा बिझनेसचे जे इन्कम टॅक्स किंवा इन्कम टॅक्स नाही, आपलं 16 नंबरचं जे फॉर्म आहे सगळं ते आम्ही ते ऍडिशनल घ्यावे लागतील त्याचं. पण एक्सपान्शन सुद्धा यामध्ये बसत आहे आणि बरेचसे एक्सपान्शन वाले प्रोजेक्ट्स छान आहेत. त्याच्यामध्ये पॅकिंग मशीन आली आणि याच्यामध्ये सगळ्या इव्हन मिठाईच्या पॅकिंग स्वरूपात आहेत त्या स्वीट्स त्या सुद्धा यामध्ये येतील. तर अशी ही स्कीम आहे. याच्यामध्ये आपण शहरा भागात पण शहरी भागामध्ये म्हणजे तुम्ही आमच्याकडे अप्लाय करू शकता. आमचे नंबर आम्ही દેતોય સ્ક્રીન પર આપણા સામે જે 3 સર છે એમનો નંબર અને સંતોષ સર છે જે આજે કંઈક કારણસર આવી નથી શક્યા, એટલે બેંકનો જે રોલ છે એ સંતોષ સર તમને એમાં હેલ્પ કરશે. એમણે પર્સનલી કીધું છે કે જેને પણ મને કોલ કરવું હોય તો કરી શકે છે. વિશાલ સર, ભગવાન સર અને જગાતે સર પણ આપણને હેલ્પ કરશે એમાં. હવે 2 શબ્દ હું જગાતે સરને કહું છું, તમને જણાવશે. यामध्ये माझी एक विनंती राहील तुम्हाला, जे इंटरेस्टेड आहेत त्यांनी मला हे वर्कशॉप संपल्यानंतर मला नंबर देऊन द्यावा. वी कॅन डिस्कस ऑन फोन आणि तुम्हाला अजून माहिती काही डाऊट्स क्लिअर करायचे असतील तर आम्ही करू. कारण यामध्ये आम्ही आमच्यासोबत काही DRP पण आहेत, भरपूर DRP आहेत. त्यामुळं DRP तुम्हाला म्हणजे तुमचे काही इकॉनॉमिकल डाऊट्स असतील तर आम्ही ते DRP सांगू. कारण बँकेमध्ये ऍक्च्युली आम्ही जात नाही, बँकेमध्ये DRP स्वतः 1-2 वेळा चौकशी करतात. या बाबतीत तुम्हाला हेल्प करण्यासाठी DRP आहेत. त्यामुळं त्या गोष्टी काही तुमचे डाऊट्स असतील ते सुद्धा क्लिअर करतील. त्यामुळं जे वर्कशॉप झाले तर मला नंबर दिले तर बरं होईल, म्हणजे आपण नंतर फोनवर वगैरे चर्चा करता येईल. सर आपण सगळ्याला तुमचा नंबर स्क्रीनवर दिलेला आहे इकडे, ओके. सगळं तुम्हाला कॉल करू. नहीं आपसे तो पर्सनली भी मिल सकते हैं अपॉइंटमेंट. यस सर, अभी सर थाने में बैठते हैं वो कशिश पास में कशिश हमारा ऑफिस है एग्रीकल्चर का, मैं कल्याण में बैठता हूँ. पर्सनली इट इज वेरी इफेक्टिव एंड फ्रूटफुल. हाँ, चाय पे जाता. Without agriculture, हाँ, any other industry is not agriculture. नॉट दिस इज मायक्रो फूड. आपण जे खातो वही. एक मिनिट. Engineering है कि नहीं? थँक्यू सर. एक फोटो गजानन जगाते हैं. मैं राइट नाउ BMC में एज ए कंसल्टेंट प्लस ये DRP का भी सब काम करता हूँ. और थैंक यू पंड्या मैडम मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और थैंक यू माने सर और कल्याण से सर एग्रीकल्चर से आए हैं आपको मार्गदर्शन करने के लिए. तो ये स्कीम के लिए भी मैं काम करता हूँ. और अभी एकदम माइक्रो फूड एंटरप्रेन्योर्स के बारे में आपको दोनों सर ने आपको माइक्रो लेवल पे जाके सब बताया है. तो मैक्रोली मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जो भी फूड है, खाने की चीज है, ह्यूमन के लिए या एनिमल्स के लिए, इसका प्रोसेसिंग किसी भी लेवल पे, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्शियरी लेवल, ऐसे इसके लेवल्स है. आप प्रोसेसिंग का बिजनेस करते हो तो वो बिजनेस इस स्कीम में समझा जाएगा.
मतलब आपके जो क्वेश्चन है कि ये फूड बैठता, ये नहीं बैठता, वो नहीं बैठता, सभी बैठेंगे। आटा चक्की भी बैठेगी अगर आप उसको पैकिंग करके बेचते हो तो। मतलब ये सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए स्कीम है। हर फूड का आप सेल्फ लाइफ बढ़ा रहे हो। एक्सेप्ट एक एग्जांपल है कि मिल्क उसमें नहीं आता है। मिल्क को आप अगर प्रोसेसिंग करके उसको अलग नाम देते हो, जैसा मिल्क से आप दही बना रहे, पनीर बना रहे, छाछ बना रहे, मावा बना रहे, जो भी जितने भी प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बन रहे वो सब इसमें इंक्लूड होता है। और इसका मैक्सिमम लिमिट सब्सिडी का है 10 लाख। कितना है? 10 लाख। आप 30 लाख का भी प्रोजेक्ट बनाओगे तो भी आपको 10 लाख सब्सिडी मिलेगी। 1 करोड़ का बनाओगे तो भी 10 लाख ही सब्सिडी मिलेगी। 20 लाख का बनाएंगे तो 7 लाख समथिंग आपको सब्सिडी मिल सकती है। ये मैक्रो लेवल पे हो गया। इसके अलावा और आपको कुछ क्वेरीज हैं ये स्कीम के बारे में? बीएमसी का सर्टिफिकेट चाहिए क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं। इसका लाइसेंस एनीथिंग रिक्वायर्ड फ्रॉम बीएमसी? यू आर फ्रॉम बीएमसी, नो? या So what is the role of BMC in this project? The BMC role is only to connect you to this scheme, nothing else. प्रेजेंटेशन है मोर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे, राइट? हाँ। व्हाट इज द स्टाफ किती है तेवढा रोल का है काय? हाँ, अब दूसरा डिपार्टमेंट से जहाँ पे उनकी एक्जिस्टिंग ऑलरेडी बिजनेस है, उसी बिजनेस को उनको बढ़ाना है। हाँ। कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, बराबर है? Yes, जैसे yes. का कपड़े का गारमेंट का बिजनेस है, गारमेंट का ऑलरेडी बिजनेस है, उनको एक्जिस्टिंग बिजनेस को और बढ़ाना है। हाँ। तो क्या आपकी माइक्रो इंडस्ट्री इसमें वो हेल्प करती है क्या? करेगी ना, राइट? बट अभी अपन एक ફૂડ એન્ટરપ્રેન્યોર્સ કે બારે में બોલ એટલે તમને એ જ ક્વેશ્ચન પૂછે છે કે ફૂડના રિલેટેડ તમને લોકોને કઈ ક્વેશ્ચન છે ક્વેશ્ચન? ઓકે, તો હવે તમને અધર દેન ફૂડ પ્રોડક્ટ કઈ ઇન્ડસ્ટ્રી માટે આપણે લોન અપ્લાય કરી શકીએ એની માટે સમજાવે છે સેકન્ડ સ્ટેજ પર। अभी फूड से रिलेटेड अंकल क्या पूछ रहे थे? शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस की गरज असतं का? उसमें आपको शॉप एंड एस्टॅब्लिशमेंट लायसन्स की रिक्वायरमेंट असतं का तिकडे? ते विचारतात सर। फूड प्रोडक्टसाठी गुमास्ता लायसन्सची गरज असतं काय? गुमास्ता लायसन कशासाठी असतं की तुम्ही एक शॉप उघडून बसलेले आहेत, तिथे तुम्ही मॅनपॉवर यूज करताय, त्यासाठी ते गुमास्ता असतं। तुम्ही मला बीएमसीचा आलोय म्हणून असं काही वेगळे क्वेश्चन विचारू नका, मी वाटलं काढून ठेवतो। उद्यम सर्टिफिकेट आवश्यक आहे, ते उद्यम सर्टिफिकेट घ्यायचं असतं। जसे तुम्ही इंडियामध्ये तुम्हाला आधार कार्ड काढणं आवश्यक आहे, तसं तुम्ही बिझनेस सुरू केलं की उद्यम करणं आवश्यक आहे। उद्यम आणि फूड हे प्रत्येक जो फूड एंटरप्रेनर आहे, ज्याला फूड बनवून विकायचं आहे, तरी एवन तो रोडवरच्या गाडीवाला पण हो सकते, मतलब जो रोड पे गाड़ी वाला भी है उसको भी फूड और उद्यम जरूरी है। सर फूड इंडस्ट्री के लिए इसके लिए हाँ, उद्यम हाँ लगेगा, मुझे समझ में नहीं आता। આમાં यस તમે પેકિંગ કરીને વેચી શકો છો ને? शॉप एस्टेब्लिशमेंट का कोई आपका शॉप रहेगा नहीं तब तक आपको शॉप एस्टेब्लिशमेंट नहीं लगेगा। नहीं, घरेથી बिजनेस करशो तो काई नहीं जरूर। आप जब मैन पावर हायर करते हो, आपका शॉप कहीं पे एग्जिस्ट करता है, किसी को आप वहां से सेलिंग करते हो, तब जाके आपको शॉप एस्टेब्लिशमेंट का लगेगा। हमारे उधर किसका बहुत बड़ा घर है और वो घर से बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं, हाँ, तो उसको लगेगा नहीं? तो लगेगा। आदमी भी हायर किया हुआ है, लगेगा। एक सोसाइटी पिक्चर में आती है लगेगा। देखो, एक आप कोई तो यूनिट शुरू कर रहे हैं, आप वहां से एक बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वहां पे लगेगा ना, ठीक है? तो हम लोग वो चीज से थोड़ा सा जाके अपने जो मेन स्कीम का जो फायदा है वो कैसे मिले वो देखेंगे। वो जो आपको कौन सा लाइसेंस लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा, कितने का लगेगा, फूड लाइसेंस आपको जनरल लगेगा,
या इंटरनेशनल वाला लगेगा, एक्सपोर्ट वाला लगेगा, वो सारा हम लोग ट्रेनिंग देंगे आपको 3 दिन का। वहाँ बिठाएंगे, आपको नाश्ता चाय नाश्ता करवाएंगे, खाना खिलाएंगे, साथ में 1200 रुपए भी देंगे और सर्टिफिकेट भी देंगे, ठीक है। એટલે એકચ્યુઅલી બહુ જ ટ્રેનિંગમાં તમે જશો ને આપણને એમ થશે કે રિયલી મને આટલું બધું ખબર નથી, પણ હું મારો પોતાનો એક્સપિરિયન્સ કહું છું કે હું તો ઘરે બેસીને જ મારો શોખ છે એની માટે હું ક્યારેક કરું છું, પણ મને બહુ જ સારો એક્સપિરિયન્સ મળ્યો આ બિઝનેસ ટ્રેનિંગનો. એટલે તમે જ્યારે અપ્લાય કરશો તમે એલિજિબલ થશો આની માટે તો તમને પોતાને ખ્યાલ આવશે એનો. ये बिजनेस करना एक छोटा सा विषय नहीं है, बहुत बड़ा विषय है। इसके हर एक अलग अलग चेन है। जो आप डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट पूछ रहे हैं उसके बारे में मैं आपको आज कम बताऊंगा, उसके लिए ट्रेनिंग स्पेशल है। हमारे पास और एक्सपर्टीज है। सिर्फ स्कीम क्या है, स्कीम में बेनिफिट क्या है और कौन सी इसमें बिजनेस इंक्लूड होते हैं, कौन से नहीं होते, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सर वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, बट हम ट्रेडिंग कर रहे इससे बाय करके फूड आइटम। ट्रेडिंग के लिए गवर्नमेंट के पास कोई सब्सिडी नहीं है, ठीक है। और फूड का अगर खत्म हुआ तो मैं दूसरी स्कीम शुरू करूंगा। फूड का अभी और कुछ क्वेश्चन है? अब सेटिस्फाइड? आपको कोई बिल जीएसटी वाला मांगता है तो फिर आपको जीएसटी लेना पड़ेगा, क्योंकि वो बंदे को आगे जीएसटी भरना होता है। वो जीएसटी का पूरा चेन है, आपके सीए इसके बारे में आपको और ज्यादा डिटेल में बताएंगे, ठीक है। और ये हो गया अपना फूड का रिलेटेड बिजनेस। सेम स्कीम है, ऐसा ही स्कीम पैरेलल स्कीम है पीएमईजीपी, सीएमईजीपी, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, मुख्यमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम। उसके अंदर भी सेम, अगर आप अदर देन फूड या फूड के रिलेटेड भी अगर स्कीम के फायदा लेना चाहते हो या बिजनेस करना चाहते हो तो उसमें भी आपको सब्सिडी मिलता है। उसका थोड़ा सा वेरिएशन है कि आप अगर अर्बन में हैं तो आपको थोड़ा कम मिलेगा। मैं एक जनरल में अगर जेंट्स बिजनेस करने के लिए लोन लेता है, जनरल कैटेगरी वाला, कास्ट के बारे में बोल रहा हूं मैं, जो भी SC ST OBC है, ओपन कैटेगरी वाला जेंट्स अर्बन एरिया में फूड प्रोसेस कोई भी प्रोसेसिंग के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लस सर्विसेज, आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी लोन ले सकते हो, सर्विसेज के लिए भी ले सकते हो, बट ट्रेडिंग के लिए लोन आपको ये कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। तो उसको 15% सब्सिडी मिलेगी। कितना? 15%, 15%। अगर आप लेडीज है, जनरल है, लेडीज के लिए कास्ट का कैटेगरी नहीं है, अर्बन में है तो आपको 25% का इसमें सब्सिडी मिलेगा। अगर वही लेडीज ग्रामीण में जाके, रूरल में जाके अगर बिजनेस कर रही है तो उसको 35% सब्सिडी मिलेगा। ये हो गया सब्सिडी का स्लैब। अगर कास्ट में जेंट्स है, वो अर्बन में कर रहा है तो उसको 25%, कास्ट में जेंट्स है वो रूरल में जाकर कर रहा है तो उसको भी 35%। और इसमें मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, सभी प्रकार के बिजनेस आते हैं। अब ये मत पूछना कि ये आता नहीं, वो नहीं आता। मैन्युफैक्चरिंग अगर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो भी आप उसमें आ सकते हो, ठीक है। इसके बावजूद आपको कुछ क्वेश्चन? सर, मैन्युफैक्चरिंग में अगर कोई कंपोनेंट इंपोर्ट होके मैन्युफैक्चर हो रहा है तो चलेगा? आप मैन्युफैक्चरिंग क्या कर रहे हो उसके अंदर? इलेक्ट्रॉनिक्स। आप मशीनरी यूज कर रहे हो उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग का मीनिंग क्या होगा? ऑफ कोर्स कि आपको एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स वो एक समझो पैनल है, पैनल को फैब्रिक, फॉर एग्जांपल आप बताइए कुछ। सपोजिंग स्क्रीन्स है, स्क्रीन्स का पैनल का फैब्रिकेशन होके फिर मैन्युफैक्चर। आप सोलर पैनल की बात कर रहे हैं? नहीं, स्क्रीन ओके। उसको मशीनरी यूज करेंगे आप? सॉरी, मशीनरी लगेगी उसको, फैब्रिकेशन होएगा, मतलब उसको कन्वर्ट करने के लिए मशीन लगेगा ना? यस। अगर आप उसको मशीनरी से कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपका मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। आप अगर उसको असेंबल कर रहे हैं तो वो सर्विसेज में आएगा। बहुत हो रहा है सर, तो बहुत हो रहा है तो आएगा, दोनों हो रहा है। नहीं, वो आप उसको, वो एक उसमें थोड़ा थिन लाइन है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस की, उसको हम लोग कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में करेंगे। उसमें और एक चीज है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसका आपका प्रोजेक्ट 50 लाख तक है तो उसको ये सब्सिडी का स्लैब 50 लाख तक मिलेगा। 1 करोड़ का भी लेंगे तो आपकी सब्सिडी 50 लाख के ऊपर कंसिडर होगी। अगर आप सर्विसेज में ले रहे तो आपका बिजनेस सिर्फ 20 लाख तक का ही कंसिडर होगा।
अगर आप 1 करोड़ का भी लोन लेंगे तो आपकी सब्सिडी के लिए 20 लाख ही कंसिडर होगा। ठीक है, एक परसेंटेज बता दिया, अब ये सब्सिडी का स्लैब बता दिया। रूरल जहाँ ग्राम पंचायत होता है, हाँ, अगर उसको आपको ग्राम पंचायत का सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। छोटे छोटे अभी लोग डेंटिस्ट जो बनते हैं, हाँ, वो जो मशीनरी यूज करते हैं मशीनरी के लिए, वो डेंटिस्ट, हाँ डेंटिस्ट। सर मुझे एक बताइए, आप अपने लिए सोच रहे हैं कि आप मेरी क्लाइंट है, मेरी हाँ, क्लाइंट है जो शिमला से आया हुआ है, वो सर्विसेज में आ जाएगी, सर्विसेज में। इवन हम लोगों ने जो डॉग्स के पार्लर होते हैं उनके लिए भी लोन दिया हुआ है, उसमें भी सब्सिडी दिया हुआ है। और कुछ चाहिए हम तो यहाँ पे यूएन बैठेंगे, फिजियोथेरापिस्ट में दिया वो થોડા સા એડજસ્ટ કરો। એમણે સિમ્પલ વર્ડમાં એક કહી દીધું, PMEGP અને CMEGP અધર દેન ફૂડ મેન્યુફેક્ચરિંગ એન્ડ સર્વિસીસમાં કોઈ પણ ટાઈપની લોન માટે તમે અપ્લાય કરી શકો છો, કોઈ પણ ટાઈપની। હવે એક્ઝામ્પલ એમણે ડોગ પાર્લરનું જ આપણને આપી દીધું છે। सर लोन तो ऐसे भी मिलता ही है, बराबर, आपके तरफ से मिलने से 3% कम होएगा वैसा मिलेगा। સબસિડી મળી જાય છે ને તમને એના પર? लोन तो सभी को मिल रहा है, बराबर है, MSME भी देगा, जनरल बैंक भी देगा, तो आपका वो 3% का लेस हो थ्रू आप जाएंगे तो हाँ, इसमें भी उसमें सर 3% पीएमई रेट ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन का स्कीम होता है कुछ, जिसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो 3% मिलता है। हाँ बस ये फायदा है। हाँ, मतलब वो सभी स्कीम पे नहीं है, वो CAI जो स्कीम है वो सर ने जब बताया उसमें इसमें नहीं है ना सर, ये सर कि जैसे अभी 1 करोड़ का जैसे इनको मशीनरी खरीदने का है, बराबर है ना, तो जैसे मशीनरी का इन्होंने प्रोसेस चालू कर दिया, ओके, सब कर दिया। अभी वो मशीनरी के लिए जो पैसा आपके पास से जो मिलेगा, हाँ, वो डायरेक्ट हम लोग को बैंक को पहले आपको लोन के लिए एप्लीकेशन करना, बराबर, राइट, बराबर, लोन का वो अकाउंट खुलेगा, यस सर, बकायदा अकाउंट खुलेगा, फिर बाद में अकाउंट खुलने के बाद में आपके गवर्नमेंट से उस अकाउंट में 1 करोड़ रुपया आएगा, ऐसा है? पैसा गवर्नमेंट नहीं देता है, पैसा ये लोन बैंक से लेना होता है, बैंक से लेना। हम सिर्फ सब्सिडी के लिए आपके पास प्रोसेस करेंगे, हेल्प करेंगे। वो जो एप्लीकेशन है हम प्रोसेस करेंगे, आपके पास से लेंगे, साइट पे अपलोड करेंगे, कमेटी में रखेंगे, कमेटी बैंक में भेजेंगे, बैंक फिर प्रोसेस करेंगे। ये प्रोसेस के लिए हम लोग है, गवर्नमेंट आपको पैसा लोन नहीं दे रही है, गवर्नमेंट सिर्फ सब्सिडी दे रहे हैं, बिकॉज ऑफ आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेंगे, फूड प्रोसेसिंग करेंगे और सेल्फ लाइफ बढ़ाएंगे फूड्स का, इसके लिए। ठीक है, ये क्लियर है। આ યોજનાનો ઉદ્દેશ તમારા બિઝનેસમાં, હા, એટલે સબસિડી મળી એટલે તમે સમજો કે આપણે જે અમાઉન્ટની લોન લઈએ છે એનાથી 35% ઇન્ટરેસ્ટ રેટ આપણને ઓછા પૈસા ભરવાના છે, એટલે કેટલો હ્યુજ અમાઉન્ટ તમે લોન લો છો ને કેટલા આપણને ઓછા ભરવાના આવે છે, અને તમે બિઝનેસ એટલો તમારો એક્સપાન્ડ કરી શકો એ ઉદ્દેશથી આ યોજના બનાવવામાં આવી છે। कैटरिंग बिजनेस जो है वो फूड में आएगा, कैटरिंग बिजनेस फूड में नहीं आएगा, वो सर्विसेज में आएगा, उसमें आपको PMEGP में लोन मिल मतलब अप्लाई करना होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा PMEGP का? हाँ, ये सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड्स ऑन योर सिविल स्कोर, और आपका बैंक, हर एक बैंक का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो बैंक डिसाइड करता है आपका सिविल स्कोर देख के। आप अगर CGTMSE में लेते हैं, CGTMSE एक स्कीम थोड़ा ध्यान में रखो कि ये विदाउट कोलैटरल, बैंक में जाने के बाद क्या होता है, वो बोलते हैं आप कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट दो या कोलैटरल रखो कुछ, तो उसमें 5 करोड़ तक आपको कोलैटरल देने की जरूरत नहीं है एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन, बट बैंक वाले अपनी गाइडलाइन लगाते हैं, गवर्नमेंट की सुनते नहीं है, ये बात अलग है। तो CGTMSE में लेंगे तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, अगर बैंक का 10 है तो 12 साढ़े 12 तक जाएगा। ठीक है, उसमें आपको कोलैटरल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ बैंक देते कुछ बैंक नहीं देते, बी फ्रैंक। सर मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ क्या? इनमें से ही एक क्वेश्चन है मेरे पास, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगी किसी का नाम। कोरोना के टाइम में बहुत सारे बिजनेस में इफेक्ट हुआ है, तो वो टाइम पे उनका सिविल स्कोर डाउन हो गया है। अभी
सीन वैसा है कि उनको बिजनेस चल रहा है, टर्नओवर पहले से कम है लेकिन बिजनेस चल रहा है, सिविल स्कोर फैमिली में तीनों का डाउन है और उनको बिजनेस एक्सपांड करने के लिए लोन चाहिए, तो क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट का कहना है बैंकों को कि आप सिविल स्कोर मत देखो, डायरेक्टली लोन दो। वो डिपेंड करता है बैंकों को। सर आप बैंक किसी ईमानदार को भी नहीं देती है और विजय माल्या को दे सकती है, ऐसा नहीं। सर आप बैंक सजेस्ट करो ना जहाँ पे सक्सेस है, मतलब लोन का प्रोसेस इजीली प्रोसेस। नहीं, हमारे लिए सारी बैंक एक जैसी है। हम तो बोलेंगे सारे नेशनलाइज बैंक में करो, जिसका IFSC कोड है, नेशनलाइज बैंक लो, कोऑपरेटिव लो, प्राइवेट बैंक भी इसमें कर सकते हैं। ओके, बट उन्होंने बताया कि जैसे कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा उसमें वो बस बैंक ऑफ बड़ौदा एंड कैनरा बैंक मेजोरिटी लोन आमा पास થયેલી છે। ये स्कीम जिसके समझ में आई, बैंकों को भी पता नहीं है स्कीम्स क्या होती है। जैसे आपको पता नहीं तो बैंक को कहाँ से पता है? उनको पहले 100 काम ज्यादा होते हैं। तो उनको जिन बैंक को समझ में आ गया है कि गवर्नमेंट से पैसा आता है, एक सिक्योर्ड टाइप में ये बिजनेस होता है, तो वो करते हैं। और हम लोग उनको सजेस्ट करते रहते हैं। हमारा उनके साथ मीटिंग होता है कलेक्टर के अंडर में, और हम लोगों ने तो इवन मुंबई के लिए जो ये प्रोजेक्ट में जगह का जो क्राइटेरिया है, अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो पहले आपको जगह दिखाना होता है कि आपके पास एक शॉप होना चाहिए, फिर आप बिजनेस शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पे ये रखा, मैंने खुद रखा कलेक्टर के सामने कि मुंबई में जगह का प्रॉब्लम होता है। एक अगर माइक्रो एंटरप्रेन्योर जगह रेंट पे लेगा तो वो साल भर तो उसका प्रॉफिट में आएगा ही नहीं, उसका सारा प्रॉफिट वो जगह वाला ही लेके जाएगा। डिपॉजिट दो, रेंट दो, कहाँ से कमाएगा कहाँ से? इसलिए हमने बोला घर से भी अगर कोई बिजनेस करता है तो उसको अलाउड करो। ये हम लोगों ने प्रोविजन मुंबई के अंदर किया हुआ। सोसाइटी पिक्चर में आती है, सोसाइटी कम्स इन द पिक्चर में आएगा ना। सोसाइटी बहुत बड़ा नहीं करना है, माइक्रो है ना। अपन आप किचन में एक छोटा सा कर रहे हैं, बराबर, आप टिफिन सप्लाई कर रहे हैं, तो सोसाइटी को कौन सा प्रॉब्लम होने वाला है? बिजनेस को आप बिजनेस की तरह करेंगे, बड़ा गैस सीढ़ी लेंगे, उसको चिमनी लगाएंगे या बहुत बड़ा किचन सेटअप करेंगे। अभी डे बाय डे आप देखते होंगे क्लाउड किचन आ रहा है ना कंसेप्ट। तो ऐसे छोटा मोटा एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा बड़ा पैमाने पे कर रहे हैं तो फिर आपको सोसाइटी का एनओसी लगेगा, फिर और वो चेन चालू हो जाएंगी, इसका एनओसी लो, उसका एनओसी लो, है ना। तो जो माइक्रो है, हमारा फोकस माइक्रो पे, माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप। સરે આપણને બેંકના નામ આપ્યા છે જે સામેથી તમને સપોર્ટ કરશે બેંકવાળા લોન એપ્લાય માટે। બેંક ઓફ બરોડા, બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્ર, ભારત કોઓપરેટિવ બેંક મુંબઈ, કેનેરા બેંક, સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, ડીએનકે અને ડોંબીવલી નાગરિક સહકારી બેંક અને જીપી પરિસર બેંક, HDFC બેંક, ICICI બેંક લિમિટેડ, ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ બેંક, કલ્યાણ જનતા સહકારી બેંક, કર્ણાટકા બેંક લિમિટેડ, કોટક મહિન્દ્રા બેંક લિમિટેડ, મહારાષ્ટ્ર ગ્રામીણ બેંક, સારસ્વત કોઓપરેટિવ બેંક, સ્ટેટ બેંક ઓફ इंडिया। सर कट करो। और इसके अलावा जिस बैंक से आपके रिलेशन अच्छे है वो बैंक, ठीक है, सबसे बढ़िया। द थाने डिस्ट्रिक्ट बैंक, द थाने भारत सहकारी बैंक, द समराव विठल कोऑपरेटिव बैंक, मेजोरिटी बड़ी बैंक आमा इन्वॉल्व छे, मेजोरिटी। जो आपके साथ में अच्छे रिलेशन है वो सबसे अच्छा बैंक। और कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें? जो सब्सिडी अमाउंट जो बताया गया था प्रोसीजर में, हाँ, तो जब बैंक लोन पास कर रही है 2 महीने बाद सब्सिडी अमाउंट तो वो लोन अकाउंट में आ जाएगी, लेकिन बैंक्स जब लोन प्रोसेस करके जो EMI कैलकुलेट होता है उसमें 90% इंटरेस्ट पार्ट होता है, तो वो सब्सिडी अमाउंट प्रिंसिपल में कन्वर्ट 3 साल बाद होने वाला है। यस यस। तो स्टार्टिंग में तो हमारा इंटरेस्ट तो पूरा जाने ही वाला है, तो वो कैसे रिटर्न आएगा? वो इंटरेस्ट अभी देखो कुछ तो मिल रहा है ना आपको, वो बैंक पे डिपेंड करता है, वो डे फर्स्ट में आपको उसमें माइनस कर रहा है या 3 साल के बाद में माइनस कर रहा है, ठीक है। तो वो माइनस करने वाला है कि नहीं करने वाला? वो सारी नियत पे डिपेंड करता है बैंक वाले के। बहुत सी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, उसके हिसाब से बैंक चलते नहीं है।
बैंक की कमाई हम क्या गाइडलाइन बहुत से बैंक के लिए है कि आप ऐसा करो, विदाउट सिविल आप देखे उनको लोन दो, विदाउट कोलैटरल उनको लोन दो, लेकिन नहीं करते हैं। हाँ, क्योंकि आखिरी में वो भी एक पब्लिक का पैसा लेके बैठे, वो आपको दे रहे हैं, आपसे वो पैसा लेना है उनका कंसर्न। પબ્લિકના પૈસાથી જ આપણને લોન મળવાની છે, એટલે પબ્લિક પણ શાંતિથી રહી શકે એ પ્રમાણે જ બેંક આપણને સપોર્ટ કરવાની છે। નહીતર રિસન્ટલી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ શું ચાલી રહ્યું છે। और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए સર તમારે કોઈ ક્વેશ્ચન હતું? हेलो वांदो नहीं बोल। No, 18 to 65। हाँ, एज लिमिट है। सीएम ईजीपी में आप 45 एज है। स्टेट गवर्नमेंट का जो स्कीम है वो 45 का क्लोज होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का वो 60 पे क्लोज होता है, और 60 के बाद आपको कोई भी बैंक लोन देने से कतराता है, नहीं देता, ऐसा नहीं, कतराता है। सर इसमें भी ट्रेनिंग प्रोवाइड होता है, सीएमई जीपी में भी 3 डेज का ट्रेनिंग प्रोवाइड होता है उसमें। हाँ, कुछ इसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग है, कुछ इसमें ऑफलाइन भी है, ठीक है। और मतलब ये ईडीपी ट्रेनिंग होता है, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ये एकदम ब्लैंक बंदा है जिसको बिजनेस क्या है मालूम नहीं है, तो परचेस कैसे करना, उसको प्रोसेस कैसे करना, मार्केटिंग कैसे करना, ये जनरल ट्रेनिंग होता है। ऐसा नहीं कोई प्रोडक्ट को लेके स्पेसिफिक नहीं होता है। फूड का है तो वो थोड़ा फूड की जो नॉर्म्स है वो आपको थोड़े बताते हैं। इसका प्रोसेस ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा? किस चीज का? सारे स्कीम का ऑनलाइन प्रोसेस है। इसके अलावा जिसका बहुत बड़ा बिजनेस है, करोड़ों में करना है, जिसका एग्जिस्टिंग यूनिट है, उसके लिए भी अलग स्कीम है, उसके लिए आप मुझे अलग से मिल सकते हो। इवन 90% तक सब्सिडी वाला स्कीम है। जो बड़े पैमाने पे आप करते हो तो आपको उतना स्कीम मिलता है, वो आपको सब्सिडी मिल सकता है, ठीक है। थैंक यू। આપણે એક फॉलोअप रहता है। मतलब वो ये जो प्रोग्राम रहेगा ना वो फाइनेंशियल इंक्लूजन का प्रोग्राम है, वो लोगों को थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए है। तो बैंक इसमें अगर जिनाइन केस है और रिजेक्ट कर रहे हैं तो बैंक के ऊपर भी मतलब वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरफ से वो डीएलसीसी रहती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कंसल्टेटिव कमेटी, इसमें हम इशू रेज कर सकते हैं। એટલે યોજના આપણને બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવાથી અપગ્રેડ કરવાથી બેંકને બી તમને પણ ફોલો કરે છે કે તમારું કામ ક્યાં અટક્યું છે, અને કામ આપણા તરફથી પરફેક્ટ છે પણ બેંક અટકાવે છે તો એ લોકો બેન્કર સાથે બી મીટિંગ કરીને તમારું કામ ઇઝી કરવામાં તમને હેલ્પ કરે છે। આપણી વચ્ચે અહીંયા જ ઉભા રહે છે, આપણી વચ્ચે જેને પ્રોગ્રામ અટેન્ડ કર, હા આવો ને સર, ક્વેશ્ચન છે? सर आपने अभी सारी चीज़ें जो बताई उसमें पर्टिकुलर अगर हमको मुद्रा में लोन करना है या सिचुएटिव एसएमई में लोन करना है तो उसके बारे में थोड़ा हाईलाइट कीजिए ना, क्योंकि नॉर्मली हम बैंक को जाते हैं तो मुद्रा के लिए बोलेंगे तो बैंक थोड़ा पीछे हट जाता है, वो बोलता है अरे आप गोल्ड लोन रखो, ये करो। तो एसबीआई बैंक जैसे बैंक भी हमको बोलती है अरे आप गोल्ड लोन ले लो, अब ये सही है सर। मुद्रा डिस्करेज करते हैं, तो इसीलिए चार प्रकार के इसमें मुद्रा आता है। शिशु है, किशोर है, तरुण है, तरुण प्लस है। शिशु में 50,000 तक लोन विदाउट एनी कोलैटरल सिक्योरिटी देना चाहिए। किशोर में 5 लाख तक का लोन विदाउट एनी सिक्योरिटी, तरुण में 10 लाख और तरुण प्लस में 20 लाख तक लोन विदाउट एनी सिक्योरिटी देना चाहिए, बशर्ते आपको उसके जो डॉक्यूमेंट्स है, सप्लीमेंट डॉक्यूमेंट, वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट का रूल है, बट बैंक को इसका एक्सपीरियंस ऐसा है कि 60% जो लोन है वो एनपीए में गए हुए। लोगों की धारणा कुछ अलग है, लोग अलग काम के लिए यूज कर रहे हैं, या अनसक्सेसफुल बिजनेस हो गया तो वो एनपीए हो गया, इसलिए वो थोड़ा से पीछे आ रहे हैं। अदरवाइज गवर्नमेंट गारंटी लेता है कि ये पैसा अगर डूब गया तो हम लोग इसमें से, मतलब एक इंश्योर्ड होता है वो स्कीम, तरुण अपना ये मुद्रा उन्होंने देना ही चाहिए, ठीक है। आप उसको छोड़ो मत बैंक वालों को। सर अभी आप लोग का सपोर्ट मिल गया है ना, तो सबका बिजनेस स्टार्ट भी होगा और अपग्रेड भी होगा। इसके रिलेटेड अगर कोई हेल्प चाहिए तो हम बात कर सकते हैं। हाँ, बात करो ना। 100% आपका प्रपोजल रहेगा ना, प्रपोजल ऑनलाइन रहेगा, और उसके बाद जब आप बैंक आपको प्रॉब्लम करेगी तो हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। सर प्रपोजल सबमिट केलेला आहे ओके। आता त्यांनी काय केलं की टर्म लोन ऍक्सेप्ट करतायत आणि ओडी नाही म्हणतात,
So they are distinguishing between that. ओके IOB, SBI ने तो हाथ ऊपर कर दिया था, फिर IOB में बात किया, कैनरा में बैंक बात किया. ठीक है सर. क्या है, बैंक है ना, बैंक का सभी बैंक के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर रहते हैं. मतलब मुंबई सिटी है, मुंबई सबअर्बन है, इसमें डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है. डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के ऊपर एक लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर रहते हैं हर एक जिले के लिए, और ये LDM की तरफ से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहते हैं. वो उनकी सभी जो इशू आ रहा है होते हैं फील्ड में, जो प्रॉब्लम आते हैं उनके, वो DLCC में कंसल्टेटिव कमेटी रहते हैं. इसमें जो स्कीम रहते हैं गवर्नमेंट के, जिसके सारे में सब डिस्कशन होता है. वो 3 महीने के बाद वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसका रिव्यू लेते हैं. तो ऐसा इशू आएगा कि हमारा केस जिना है नहीं, लेकिन वो बैंक इसमें इग्नोर कर रहे हैं, तो हम इशू रेज कर सकते हैं इसमें और सपोर्ट दे सकते हैं. बैंक का हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं, बैंक को कंप्लीट कर सकते हैं ना. तो काफी लोग का प्रॉब्लम यही है, बैंक को अप्लाई किया, वो बंदा आगे काम ही नहीं कर रहा, सुनते ही नहीं है. બીજી સર, આપનું નામ? તમે ક્યાંથી આવો છો? હું ઘાટકોપરમાં છું. ઓકે. JJC નોર્થ ઇસ્ટ દ્વારા આજે જે બિઝનેસ સ્ટાર્ટઅપ લોન અને અપગ્રેડ લોન એનું આપણે અહીંયા સેમિનાર કર્યું, તમને કેવું લાગ્યું? બહુ સારું લાગ્યું મને. એમ છે કે જિજ્ઞાસા અને સેન્ટરમાં આવો ને. બધાને એકચ્યુઅલી શું છે, લોન તો બધાને લેવું જ છે, બધા કેવી રીતે આપણે બિઝનેસને પ્રોસ્પર કરી છે બધાના દિમાગમાં છે. લેકિન ગવર્મેન્ટ પણ કાફી સબસિડીઝને એ આપે છે, લેકિન લોકોના મનમાં એજ્યુકેશન નથી. એજ્યુકેશન છે, અગર કોઈ હોય બેંકમાં જાય તો બેંક સપોર્ટ નથી કરતા. એમાં શું છે, 90% પીપલ આર નોટ એબલ ટુ ટેક ધ બેનિફિટ. આઈ એમ ટેલિંગ યુ. હા, મતલબ સી આઈ આ પ્રોગ્રામ JJC નોર્થ ઇસ્ટ નો છે, હા. આમાં તમને કઈ ફાયદો થયો એટલું ही મેન વાત કરી. આ બધું પતી ગયું. મારો જો નોલેજ એમના MSc માટે 0 હતું, એ હવે સ્ટોરી ધીરે ધીરે પ્રોસ્પર કરીને પોઝિટિવ તરફ જાય છે. અને આજનો પ્રોગ્રામ તમને કેવો લાગ્યો એના પર? હા, આજનો પ્રોગ્રામ રિયલી એક આઈ ઓપનર છે. લોકોના મનમાં જો MSME નો કોઈ પણ નોલેજ નથી, ધીસ ઇઝ અ વેરી ગુડ પ્લેટફોર્મ really, and people should come forward definitely to get knowledge about these aspects, these advantage, and the people supporting definitely are here to support. You should definitely know that there are people to support you, and definitely you should come forward to take advantage of MSME. થેન્ક યુ. નેક્સ્ટ. થેન્ક યુ સર. બે માઇક યુઝ કર, બે માઇક બીજું બી આપી દો. કમ ઓન ધ સેન્ટર. આવી જાઓ સ્ટેજ આગળ. આવો આગળ. તમારું નામ મેડમ? इंदु सोलंकी. ક્યાંથી આવો છો તમે? घाटकोपर. ઓકે. આજનો પ્રોગ્રામ તમને કેવો લાગ્યો એના પર 2 શબ્દ તમે કહેશો. आज के प्रोग्राम में मेरे को बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिली. ये चीज़ों के बारे में मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, और चारों ऑफिसर्स ने बहुत अच्छे से बताया हर एक चीज़ को, बहुत डिटेल में जो जो हम लोगों को, और स्पेशली लेडीज़ लोग जो घर से कोई प्रोग्राम करना चाहती, कोई भी बिजनेस, उनके लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है. जितने लोग यहाँ नहीं आए उनका नॉलेज का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है. तो और मैं बहुत सारे लेडीज लोगों से कनेक्टेड रहती हूँ एज ए प्रोफेशन. मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो प्रोफेशन में भी बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनको कुछ करना रहता है, लेकिन शायद उनको नॉलेज नहीं होता है. तो मैं यहाँ से जितना नॉलेज मुझे मिला है, मैं और लोगों के साथ शेयर करूँगी उसको, और डेफिनेटली उनके बिजनेस में भी हेल्प करेगा, और मैं खुद अपना नया बिजनेस शुरू करूँगी. ये योजना का उद्देश्य यही है कि जो भी महिला अपना बिजनेस घर से स्टार्ट करना चाहती है, प्लस महिला बचत ग्रुप यानी 5 और 5 से ज़्यादा महिला जो साथ में मिलके काम करना चाहती है, तो वो ये योजना का लाभ उठा के बैंक से लोन लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट करके अपग्रेड कर सकती है. थैंक यू मैडम. थैंक यू मैम. મારું નામ છે રોહિતભાઈ પારેખ. આઈ એમ એક્સ મેનેજર ઓફ બેંક ઓફ બરોડા. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર જૈન જાગૃતિ સેન્ટર ફોર અરેન્જિંગ this seminar, and thank you very much to our पुणेचे आले सगळे. ते लोकने माहिती दिली, ते एकदम बराबर माहिती दिलेली आहे. and people should come forward for taking this advantage. ये इंफॉर्मेशन जो दिया है, किसी को बैंक के अंदर भी तकलीफ होगा. आई एम फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा, एंड थैंक यू वेरी मच for a gentleman for Bank of Baroda is giving loan. We have got 6,000 branches. I have retired in 2010. 15 વર્ષ પાસ झाले माझे. But I am happy that my institution, my mother institution has got a good name. After State Bank of India, Bank of Baroda is there.
Thank you very much to Jain Jagruti Center for arranging this seminar. And people, जिसको भी इधर फायदा हुआ है नॉलेज के हिसाब से, people is not coming forward. वो लोग आगे नहीं आते. और जो प्रोसेस इधर बताया है परफेक्ट प्रोसीजर है. Wherever you are finding difficulty, you should approach to this gentleman. Yes, this institute. And आपको तकलीफ हो सकता है, कभी भी हो सकता है, किसी का कोई, हमारा मुझे एक्सपीरियंस ऐसा हो गया. मैं मैनेजर था तभी, कोई ड्रॉअर के अंदर पेपर रखते थे, उसका ट्रांसफर हो जाता है तो अपना काम डिले हो जाता है. तो वो चीज की मैं ध्यान में लाता हूँ कि भाई पेपर मेरा किधर गया है. एंड वेन एवर यू आर आस्किंग टू द बैंक, प्लीज गिव इन राइटिंग, मेक द एप्लीकेशन. भाई आप रिजेक्ट करते हो तो राइटिंग में दो, तो वो राइटिंग का आप इसको दिखा सकते हैं. तो माई रिक्वेस्ट इज दैट कि ये सेमिनार का जो फायदा लेने का है, जिसका भी जो लोग भी आए वो समझ गए हैं. सो नाउ कोई भी प्रोजेक्ट के लिए आपको तकलीफ हुई, मैंने बीएमसी से भी अच्छा किया कि वो लोग ने भी बताया कि आप ये कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच जगत है साहब. सो पीपल शुड टेक द एडवांटेज ऑफ दिस सेमिनार. Thank you very much. And Dimple Ben is my very good neighbor is there. So, yes, and thank you very much to Dimple Ben also for arranging this seminar with JJC Northeast. થેન્ક યુ. તેજસ જાવ્યા આજનો પ્રોગ્રામ તમને કેવો લાગ્યો? ખૂબ સરસ લાગ્યો, ખૂબ નોલેજ મળ્યું અને ખૂબ ખૂબ થેન્ક્સ કહેવા માંગુ છું જેજેસી ગ્રુપને, જે એમણે નોર્થ ઈસ્ટને જેમણે આ અરેન્જ કર્યું. થેન્ક યુ. એટલે તમે ઘાટકોપરના નથી, રાઈટ? નહીં, હું કામદીવલીથી છું. યસ, પણ તમને અમારા સેમિનાર પછી બિઝનેસ લોન, સ્ટાર્ટઅપ અપગ્રેડ અને પ્લસ ગવર્મેન્ટ યોજનાનું કેટલું નોલેજ મળ્યું? પહેલા હતું કે હવે કેટલું મળ્યું એમ? પહેલા 60-70% હતું, પણ અત્યારે 95% જેવું મળ્યું એવું લાગે છે મને. થેન્ક યુ સર. થેન્ક યુ. સાથે આપણે એક ગ્રુપ ફોટો લેવો છે, તો બધા પ્લીઝ અહીંયા સ્ટેજ પાસે